हमको तो और ध्रुव राठी चाहिए। ध्रुव राठी मेरा नेता है। शान पराशर हाय हाय, ध्रुव राठी देश का नेता कैसा हो? ध्रुव राठी जैसा। देख भाई, मैं बहुत सीधा सा हूं। ऐसे चूतिए मेरे पास आएंगे ना, हाथ पैर काट के रख दूंगा यार। मैं राहुल गांधी के वीडियोस को देखता हूँ। वो जसपाल भट्टी होते थे ना, कॉमेडियन, हाँ, उनसे भी ज्यादा फनी तो राहुल गांधी का ये नौटंकी है। And we gotta do it something like this. Welcome Abhijit bhai, taking out the time and coming on to the show. It's a pleasure sitting with you. We've been in touch for so long, but finally we are here. Finally, yes, finally we're talking. It's lovely being with you. Thank you bhai. And what पहले तो आप मुझे बताओ, डिक्टेटरशिप का ये जो चापा चल रहा है, ये it's getting on my nerves now. Like every next person who does not know anything about dictatorship keeps talking about we're living in a dictatorship. How do you think this is like? इतनी तूल कैसे पकड़ ली, इतनी आग कैसे लग गई इस बात में? See, these are narratives, okay? Anytime, and this isn't just in India. Remember this. You know, when Trump won the 2016 election, Right. that democracy rating का जो अभी धंधा चल रहा है, they downgraded America to an imperfect democracy, right? If you remember, ये धंधा होता था through the 2010s. This used to be called through the 2000s and the 2010s. This used to be called the good governance ratings. They had come up with good governance standards, right? And based on that, you would be given points. And the way of scoring points was they used to ask all their friends, ठीक है, कि is this country well governed or not? And between friends, echo chamber के अंदर बोलते थे हाँ या ना, and then your ratings would be given, and the ratings would change based on which party was in power. ठीक है? Now this is done for a very specific reason. What happened was that before the Russian Revolution in 1917, Russian bonds were rated AAA, and nobody could believe that they collapsed. In those days, they didn't have the brains to come up with the ratings. But when the same thing happened with Iran and the Shah fell in 1979, they felt the need to come up with ratings. Now, why do they come up with these, risk ratings, country risk ratings and things like that? They're a complete sham. But what happens is it allows a company board to not do due diligence and say, well, look, these are the public ratings that have been given for reliability, good governance, and democratic governance. And therefore, we absolve ourselves from blame if anything goes wrong. Right. Okay, so it reduces the cost of business. The problem is in the process of reducing the cost of business, when you create a certification agency like this, it essentially becomes a sort of old boys circle. So, for example, Michelin star to restaurants. Right. भाई फ्रेंच लोगों को खाना अलग किस्म से खाते हैं. They eat with a fork and knife, and 16 forks and 16 knives for your 16 courses. You're meant to go from the outermost fork and the outermost knife. You're meant to work your way inwards. India में सब कुछ हम थाली पे दे देते हैं. We don't serve in courses like anywhere in India. The custom is a thali, be it a South Indian wedding, be it a Bengali thing where there'll be non-veg, be it a Kashmiri thing जहाँ त्रामी होता है. You eat it differently, right? Hindu, Muslim, it's very similar eating patterns and things like that. Now, how do you rate that on a Michelin star? So what used to happen was Michelin only used to give it to owner के जाने पहचाने लोग, who they have deemed to be worthy of rating something. So अब क्या होता है कि हर चीज, जैसे आप देखेंगे अभी जो ये पैलेस्टीनियन यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, एज इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनका डिमांड में सब आप देख लीजिए, देयर इज ऑलवेज डिमांड की थोड़ा और ब्यूरोक्रेसी लगाओ ताकि वो मॉनिटर कर सके कि प्रो पैलेस्टीनियन प्रोग्राम्स हो रहे हैं और पैलेस्टीनियन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है. ये सब जॉब्स का रैकेट है. तो अब ये रेटिंग्स भी जॉब्स का रैकेट बन गया है. और ये साइटेशन लूप है. साइटेशन लूप में क्या होता है कि ये जो लेनिन बोलते थे कि एवरी आइडिया इज वर्थ 1000 पेजेस ऑफ थियरी. आपने अगर एक ऐसे वाहियात थियरी मार लिया कि राजमा खाने से पाद ज्यादा मारते हैं, इस पे एक लेफ्टिस्ट इसको पकड़ लेगा और इस पे 1000 पेज लिखेगा. इसका पता नहीं क्या क्या कॉन्स्ट्रक्ट होगा. डज द कलर राजमा का लाल कलर से क्या ज्यादा पाद निकलता है? लालर द राजमा ज्यादा बदबूदार द पाद. देन
पाद को कैसे सूंघे, इसमें सूंघने का क्या, गंदा पाद क्या सूंघ होता है, अच्छा पाद क्या सूंघ होता है, राइट ठीक है। पाद क्या होता है, अगर एक पाद में बस गैस निकला और आवाज नहीं निकला, क्या ये पाद है? हाँ अगर पाद बस आवाज निकला पर बदबू नहीं निकला, क्या वो पाद है? ये ऐसे वाहियात वाहियात चीजें करके ये 1000 पेजेस ऑफ थियरी लगा देंगे, तो ये इनका साइटेशन लूप बन जाता है, ठीक है ना। राइट यानी कि अगर आप फिर कोई भी रिसर्च करोगे राजमा और पाद के बीच में जो कनेक्शन है उसका, तो आपको बस इन्हीं के 99 पीसेस, 999 पीसेस इन्हीं के मिलेंगे, मैक्सिमम कोई और एक बंदा एक ये होगा। तो जैसे ही कोई लेफ्ट विंग थियरी आता है ना, इंडिया डिक्टेटरशिप बन गया, एक बंदे ने बोल दिया, सब उसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे कि इंडिया डिक्टेटरशिप बन गया है, ताकि इवन अ नॉर्मल रिसर्चर जो एकेडमिकली क्वालिफाइड है, जो कोई पक्षपात नहीं करता है, वो भी अगर रिसर्च करता है उसको बोलना ही पड़ेगा अपने पेपर में कि भाई इंडिया डिक्टेटरशिप है, क्योंकि 990 लोगों ने बोल के रखा है कि इंडिया डिक्टेटरशिप है, बस एक बंदा बोल रहा है नहीं है। सो दिस इज अ वेरी ओल्ड गेम। ये एक जॉब गेटिंग गेम है, ये एक सॉर्ट ऑफ साइटेशन लूप से ही जॉब्स, फंडिंग, सब कुछ आता है। तो ये ना एक बहुत ही पुराना गेम है, इसको रोकने के लिए भी बहुत आसान तरीके हैं। दो तरीके हैं। एक तो चाइना का तरीका है, हर यूनिवर्सिटी में एक चाइना स्कॉलरशिप का प्रोग्राम लगा दो। इसीलिए जब चाइना 2 मिलियन यानी कि 20 लाख उइगुर मुसलमानों को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजे, कोई उसके बारे में कुछ प्रोटेस्ट नहीं करेगा। उन मुसलमानों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया, 20 लाख मुसलमानों को एक महीने के अंदर अंदर ले जाके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया, बट इसके बारे में कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी ये है कि आप ऐसे कर दो हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट जाते हैं, आप ये बोल दो कि कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी में, जैसे रटगर्स में वो ऑड्री टुस्की है, ऑड्री तुच्ची जिसे मैं बोलता हूँ, वो ऑड्री, जहां ऑड्री तुच्ची पढ़ाती है, आप बोल दो कि हिंदुस्तान में इसका हम मानेंगे ही नहीं अगर आपने रटगर से कोई डिग्री किया, ठीक है। और रटगर्स यूनिवर्सिटी के लोगों को, जो भी रटगर्स यूनिवर्सिटी ये है, उनका कोई इन्वेंशन का अगर आईपीआर होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो भी हम तोड़ेंगे। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी आईपीआर ऑफ एनी थिंग कमिंग आउट ऑफ रटगर्स यूनिवर्सिटी। हम किसी भी रटगर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इनको वीजा नहीं देंगे, कोई भी रटगर्स यूनिवर्सिटी का डिग्री को हम हिंदुस्तान में वैलिड नहीं मानेंगे। आप देखो वो कितना जल्दी ये करते हैं, ऑड्री तुचिया को निकाल दिया जाएगा इमीडिएटली, राइट। बट वी डोंट डू दैट, यू सी। So when was the last time you went to Indonesia? About 3 years back. About 3 years back. Immediately after COVID. What do you think about the Indian influence in Indonesia, geopolitical standpoint wise? Geopolitically next to nothing. But उसमें क्या है कि बाली में हमने, I've been going to Bali for like 30 years now since I was a little kid. Wow. और उधर हिंदुओं का इतना रेस्पेक्ट होता था ना, फिर ये सब टूर ग्रुप्स ने जाके हमारा नाम बर्बाद करके रखा है। पहले जब हम जाते थे ना, यू हिंदू फ्रॉम इंडिया 50% डिस्काउंट, और असली डिस्काउंट देते थे, ये नहीं कि उसका प्राइस ऊपर करके रखा था और फिर नाम के वास्ते ये करते थे। गोरों को बहुत अच्छी तरह से चीट करते थे, पर फॉर अस वी एक्चुअली यूज्ड टू गिव हिंदूज फ्रॉम इंडिया 50% डिस्काउंट. Wow. Then all the bloody tour groups and Punjabi tourists and everything started going out there. Guju tourists, thepla, dhokla, le jao, this and that nonsense. And now they hate Indians. North Goa बना दिया ना बहन, North Goa बना दिया. Nah, basically. What made you go to Indonesia so to Bali so frequently, like 30 years? Yaar, तब तो कोई जानता भी नहीं था Bali. everything, like it's the kind of hotels they have out there, the swimming pools they have out there, the food they have there Right. is awesome. ठीक है ना? And Bali, for example, the diving is amazing. When you go about 1 or 2 hours off the shore, Right. and then you go up to the hills, it's nice and cool. So within 1 hour, you can be up in the hills. And it's all so cheap. You know, on average, Indonesian 5-star is like half the price of an Indian 5-star. Oh, wow. ठीक है ना? So, and it's such a short flight, right? It's just about 4.5, 5 hours. 4 and 5 hours, yeah. So, I mean, why wouldn't you? So Bali, when it comes to Bali and the Hindu cultural impact in Bali,
You think it's fading away with all the tourist import? No. It's actually the Hindu feeling of being Hindu has gone up. In fact, what I find surprising is that there's a kind, since Modi has come, there's much more pride in being a Hindu even amongst the Balinese. Oh, right. So, Bali में majority religion क्या है? Is it Hindu? Are those In practicing Hindus or Bali, Buddhists? yes, they are practicing Hindus. It's 98% Hindu. Oh, wow. Yeah, That's Bali alone. would that make it the second largest Hindu religion based country after Nepal? Uh If it's well, I mean, 98%, it's part of, it's a lot. but that's only an island. No, technically, it's part of Indonesia, which is like what, Hmm. 90% Muslim. Right. What do you think about China's influence in Indonesia? The way it's pushing into Africa, do you think it's pushing into Indonesia too? It's in Indonesia, it's much better controlled. Okay? Because what happens there is, see, both in Malaysia and Indonesia, what happens is most of the businesses, 80-90% of the business is in Chinese Indonesian hands, as in native Chinese. ठीक है, they're hated. They're kind of like the Jews of Indonesia, the Jews of Malaysia, and things like that. मलेशिया में तो वो भूमिपुत्रा पॉलिसी करके उन्होंने वो रिवर्स कर दिया है. They've been, अच्छा. the Chinese have kind of been disenfranchised completely. In Indonesia, it's mostly happened through riots and things like that. So there's always been a lot of tension between Indonesia, Malaysia, and China that way. So, you know, the level that they can penetrate to isn't that much. The only place there that's a Chinese majority is Singapore, which kind of hates China in that sense. You know, they're like, हम business करेंगे China के साथ, openly we'll be very friendly, but they have the strongest military of all the ASEAN countries, and it's, if you look at it per capita, there is no more militarized state on earth than Singapore, more than North Korea, in fact, you know, per capita. And imagine having 100 F-35 fighters plus 100 F-16s and, you know, 40, 50 F-15s. You're pretty much ready to sink the Chinese fleet if it comes anywhere near you. But do you think realistically the Chinese fleet can be sunk by Singapore if Oh, there's yes. Singapore, I have no doubt at all, will, there is no way China can take Singapore. Very interestingly, अभी हम पढ़ ही रहे थे ग्लोबल मिलिटराइजेशन इंडेक्स. The top 4 countries that I was completely dumbfounded, वहां पे जो नाम पढ़ रहा था, इंडिया तो बहुत नीचे है, right? Bahrain, Oman, Singapore, and Saudi Arabia. Like out of the top 10, 5 are Gulf countries. आपको क्या लगता है कि why is Gulf rearming themselves so rapidly? So what's basically happened is there's two parallel reasons out there. One is, you know, the fact that the more Iran invests in, you know, Iran used to be the cutting edge of American foreign policy under the Shah. It wasn't Saudi Arabia, it wasn't Qatar, Bahrain, anything. It wasn't the Emirates, it was Iran. If you look at the kind of equipment Iran used to get till 1979, even combined the entire Khalij, which is to say all the peninsular Arab states, would not get. They had kind of access to equipment that even Israel probably didn't have access to. Then the Shah falls. Okay. Khomeini essentially purges the entire Imperial Iranian Air Force and the Imperial Iranian Army. So he basically did to the army what Stalin did to the Red Army on the eve of World War II, which is why when, you know, the Iraqis invaded, the Iranian army didn't perform well at all. Because all the generals and the leaders had been purged, it was under heavy sanctions, so it couldn't function. And in this, what happened was, but they still had lots of weapons. So all the Gulf states started buying a lot of arms because Iran till then had been having extremely friendly relations with them. And it suddenly turns inimical to them. Ki tum log, well, they never said ki tum log Sunni ho. But their thing was ki you need an Islamist revolution because you sultans are all rotten. We need to get rid of monarchies and we need republics. Okay? Which, if you tell these monarchies that, they're going to like your enemy number one. Right. Second reason is that they found, because they're all single product economies, that relationship with America is very much like India and Russia. Russia is just a commodities economy. You see, they've got nothing other than arms and minerals to sell. Right. Now, minerals lane mein, we're not industrialized enough to buy all their other minerals. So mostly what we buy thanks to Ukraine is gas and oil. Right.
And the only other way we can keep the Russians interested in us, as opposed to China, which buys a lot of everything from Russia, is to buy weapons from Russia. And so what the Arab countries did was, the only link between them and America was oil and gas, and to expand it, the only other way they can do it is buying American arms. ठीक है ना? So that is how they keep America interested in the Gulf at all times. So, what do you think about Japan and Germany? Post World War II, they were the two countries which were the biggest aggressors during the World War II, and then they went completely silent, right? All the sanctions were imposed on them globally. But now, for the past 10 years, very slowly, they've been heavily remilitarizing themselves. So much so that Japan is like probably 10 times the speed of what it was during World War II. And it's heavily militarizing itself. Looking at China, Right. do you think this is because of China? But it isn't just now. Japan was militarized ever since the 50s, 60s, 70s. Just because they, took on a non-aggression clause in their constitution, and because they said ki bhai, we will no longer call it the army or the air force, we'll call it the Japan self-defense force, Japan air self-defense force, Japan ground self-defense force, doesn't mean they weren't militarized. Right. They were always extremely militarized. Their navy was always 3-4 times the size of the Indian Navy. Wow. They have always, and in fact, it was more so during the Cold War, because Japan had to face the twin threat of China and Russia. Okay, now they're again looking at Russia, kind of in that sense, but mostly it is now China oriented. Okay, Right. so they have always been extremely heavily militarized, number one. And this process started off from the Korean War, because when MacArthur was controlling, he was appointed as the viceroy, essentially the governor general of Japan by the Americans. What ended up happening was he gave the Japanese their constitution and everything. Right. But when the Korean War breaks out, the Korean War was the best thing that happened to Japan. Because of the Korean War, the Japanese economy grew. The kind of capital infusion that happened was enormous. It grew massively. It was also allowed to militarize very, very rapidly, in close sync with the Americans. The agreement was that Japan will not build aircraft carriers. The Americans will provide the aircraft carriers when required, but Japan will build all the submarines and ships required to protect American carriers, which would come to defend them. Right? Now, as the trust between America and Japan grew, Japan was actually allowed to stockpile enough plutonium that today, within 3 months, they can probably build about 120 to 150 nuclear bombs. They have enough stockpiles of plutonium to do that, number one. It is unsafeguarded plutonium, which means Japan, the moment it decides to do it, it can actually build those bombs. And they have now been given permission by the Americans to build their aircraft carriers as well. We knew the moment they were building these, helicopter carriers, they were called. उसको देखकर ही हमको पता था कि भाई इस पे तो Aircraft जो carrier. जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते, you don't build an airport only for helicopters ना, हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है, if it's long enough उधर plane भी लैंड कर सकता है. Right. So they built, essentially all they had to do was put more asbestos sheeting and things like that on the deck to take the heat of a jet engine and things like that, right? But they're essentially aircraft carriers for all intents and purposes. So that is where Japan is heading. ये बिल्कुल उसी टाइप का हो रहा है जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे. अब इसमें भी देख लिए कैसे पक्षपात ये खेल करते हैं. ये जो अमेरिकन जो कैनेडियन जो ट्रकर प्रोटेस्ट हुए थे, उनको सब व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, नाजी, पता नहीं क्या क्या बोला गया था. बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया. इवन दो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे, नौकरी से निकाले गए थे, जेल में डाले गए थे, इवन दो उन्होंने किसी को भी रोड पे आने से रोका नहीं. वो बस आके हॉर्न बजा रहे थे, और कई बार हॉर्न भी नहीं बजा रहे थे, बस उन्होंने आके प्रोटेस्ट किया. किसी को ग्रोसरी स्टोर जाने से रोका नहीं, किसी को खाना खरीदने से रोका नहीं, किसी रेस्टोरेंट को खोलने से रोका नहीं, पर वो सब फैशिस्ट, नाजी, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है. ठीक है. पर इधर फार्मर ने जब लोगों का हाथ काटना शुरू किया, झंडे को अप्रूव करने की कोशिश की लाल किले से 26 जनवरी को, पता नहीं कितने पुलिस लोगों को पीटा मारा कैमरा पे, ये सब डेमोक्रेटिक है. और जब इन लोगों का प्रोटेस्ट चलता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में, वो लेजिटिमेट है.
राइट है ना। राइट और ये देख लीजिए, ये टिपिकल एक कम्युनिस्ट सोसाइटल कंट्रोल का एक मैकेनिज्म है, क्योंकि ये जो वोक्स जो हैं, जो पैलेस्टाइन 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 किए जा रहे हैं, इनमें ये सब LGBTQ के लोग भी हैं, जो they अगर come in a package, no, they come in a दे कम इन अ package. पैकेज, दे कम इन अ पैकेज, ठीक है। Yeah. पर आप देख लो, जहां भी हर जगह आप अगर आप पिछले 100 साल में देखोगे, इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट हमेशा एक साथ कोलैबोरेट करते हैं जब वो पावर में नहीं होते, पर जैसे ही वो पावर में आते हैं, पहले एक दूसरे को मारते हैं। रूस में पहले सब मुल्लाओं को निकाल के मार डाला गया, पर जब रूस का रेवोल्यूशन चल रहा था 1917 में, कम्युनिस्ट बोल रहे थे, देखो ये जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के मुसलमान हैं, ये कितने ऑप्रेस्ड हैं, क्रिश्चियन लोगों ने इन पे कितना अत्याचार किया है, हम इनका भला चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। और जैसे ही वो पावर में आए, सबको एक एक करके मुल्लाओं को निकाल के मारा। आप देखेंगे कि हमारे अगर शास्त्र पढ़ेंगे, एक बहुत सुंदर सा एक संस्कृत प्ले है, उसका नाम क्या है, अमरपाली। इट इज अबाउट दिस, वो लिच्छवी जब महाजनपदा पीरियड था 500-600 BC में, तो महाजनपदा जो अर्ली डेमोक्रेसीज थे उनके, और जो किंगडम्स थे जो डेमोक्रेसीज नहीं थे, जैसे मगध कभी भी महाजनपद नहीं था, वो हमेशा एक राज परिवार के नीचे ही रहा, उनके बीच में जंग चल रहा था। और क्या हुआ, एक के बाद एक 200-300 साल के अंदर सब जो महाजनपदा थे वो कोलैप्स होके दे वर अब्सॉर्ब्ड इनटू किंगडम्स। क्यों? और वो अमरपाली के स्टोरी में आता है, जो बुद्धिस्ट पाली लिटरेचर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। उसमें क्या है कि वो थी चीफ कोर्टिजान ऑफ द लिच्छवी कन्फेडरेसी। चीफ कोर्टिजान आजकल तवायफों को बोलते हैं, पर उन दिनों में नहीं थे, क्योंकि हिंदुइज्म में हम ये मानते नहीं है, क्योंकि हमारे इधर सेक्सुअल आर्ट्स होते हैं, और जो सेक्सुअल आर्ट्स में सक्षम होते हैं उनको बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। उनको बस सेक्सुअल आर्ट्स नहीं होते थे, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, उनको पोएट्री जानना पड़ता था, म्यूजिक जानना पड़ता था, वो बहुत फेमस डांसर्स होते थे, बहुत उन दिनों के गायक होते थे। दे वर हाईली रिस्पेक्टेड पीपल। Like you will celebrate a chef today, you used to celebrate sex in those days. इंडिया का जो एटीट्यूड ऑफ सेक्स आजकल बहुत बदल गया है, ठीक है। Now अमरपाली was the chief courtesan of the लिच्छवी कन्फेडरेसी। और क्या हुआ कि जब भी मगध की सेना, जो बिंबिसारा या अजातशत्रु जब अटैक करते थे, लिच्छवी कन्फेडरेसी उनको डिफीट करते रहती थी। तो क्या हुआ, अजातशत्रु ने जाके he got captured one day, एंड उसने उधर क्या आंतरिक तनाव फैलाया अंदर, एक को एक के खिलाफ भड़काया, और 8 साल के बाद फिर उसने मैसेज भेजा वापस कि अब सेना लेके आ जा। और इस बार जब मगध की सेना आई, लिच्छवी लोगों ने खुद अपने दरवाजे खोल के मगध की सेना को अंदर। सो दिस इज अ थिंग, डेमोक्रेसीज ऑलवेज डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स। Germany was a democracy. People forget Hitler was democratically elected. True. तो डेमोक्रेसीज खुद अपने आप को खत्म कर देती है, और हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो पुराना पैटर्न है, जो हमने महाजनपदाओं में देखा था, जो 200-300 साल रही, 200-300 साल में अमेरिका और ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, अब उसका सत्यानाश हो रहा है। होने दो, जलने दो। बुरा हाल हो चुका है। मतलब लिबरल सरकार ने यूएस में, आई हैव मेट लॉट ऑफ अमेरिकन्स हु हैव मूव्ड टू ईदर कनाडा इज नॉट अ बेटर प्लेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ की लिबरल सरकार और भी गंदी है। यहाँ पे तो मतलब आप जेंडर ट्रांजिशनिंग का जो रूल्स है, 13 साल का बच्ची जाके विदाउट योर पेरेंट्स कंसेंट कह सकता है जस्ट पुट मी अंडर द ट्रांजिशन थिंग, और अब मेरी लाइफ बर्बाद कर दो। अगर आप उसको रोकोगे, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ये होती है डिक्टेटरशिप। ये जो लोग डिक्टेटरशिप की बातें कर रहे हैं ना, और डिक्टेटरशिप कैसे आ रही है, या तो ये देख नहीं रहे हैं कि लिबरल सरकारें, देखो लिबरल का मतलब ही क्या है। आई फाइंड दिस वेरी फनी। लिबरल जो पूरा मूवमेंट है, जो लेफ्ट मूवमेंट है, वो शुरू ही इसलिए हुआ था दैट वी आर ओपन टू डिबेटिंग, वी आर ओपन टू स्पीचेस, लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स दैट द राइट इज नॉट टॉकिंग अबाउट। एंड नाउ इट हैज कम टू अ पॉइंट वेयर द लेफ्ट हैज बिकम द रेडिकल राइट। या they do not want to talk to you. वो ये कहते हैं अगर ये हमारा हाईवे है, हमारी तरफ से ही चलोगे तो चलोगे, नहीं तो अपनी गाड़ी हटाओ यहां से, तुम गलत हो। But remember, the left has always been this way. रशियन रेवोल्यूशन में, चाइनीज कम्युनिस्ट टेक ओवर में, कैम्बोडिया में, वियतनाम में, कोई भी मेरे को लेफ्टिस्ट ये बोलो,
where the leftists were open to conversation. वो हमेशा बोलते हैं, सी उनका आइडिया होता है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट, यानी कि ये देखो फिर से ये एप्पल में ये आ गया, पर डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट, दे आर वेरी क्लियर इट इज अ डिक्टेटरशिप. जो पहले चार्ज में थे उनको निकाल देंगे और जो भी हमारे आइडियल्स को मानेगा बस उसी आइडियल्स को हम स्थापित करेंगे. उसके खिलाफ बोलना जुल्म है. It's my way or the highway. But what do you think, bhai, that has happened with Dhruv's and, for example, the likes of Dhruv, Mr. Akash Banerjee? The more I listen to their arguments, the more idiotic they sound. Oh no no If you no come, no. See, they are, देखिए ध्रुव राठी और जो आकाश बैनर्जी हैं ये बहुत स्मार्ट लोग हैं शान. तुम्हारे और मेरे से ज्यादा स्मार्ट है. Build a तुमको narrative. पता है, देखो हमको चूतिया फॉलोअर्स नहीं चाहिए, उनको गाना सूंघने वाले चाहिए. चुचिया दो कौड़ी के फॉलोअर्स हैं उनके, और वो क्या करते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम आपके लिए इलेक्शन जितवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे. ठीक है, वो करोड़ों पैसा कमाते हैं ऐसे. डिलीवरी उनकी कुछ नहीं होती है, उनको बस जाके ये वीडियो बनाना पड़ता है और उनके फॉलोअर्स भी ओए बोल दिया उसने, ओए बोल दिया उसने. टुमारो इफ ध्रुव राठी सेज द अर्थ इज फ्लैट, हिज फॉलोअर्स विल बिलीव इट. Right, that's true. उसने वो क्या एथीरियम या कुछ, उसने बिटकॉइन भी दो प्रोग्राम किए थे और वो दोनों बैंकरप्ट हो गए, और फिर उसने चुपचाप से डिलीट कर दिया ना अपने दो वीडियो. ही इज डन बिटकॉइन फ्रॉड एसेंशियली, बट देयर इज नो लॉ अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर्स, सो दे डू ऑल दिस नॉनसेंस. दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. देखिए उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो बहुत स्मार्ट है पर उनके फॉलोअर एक नंबर के चूतिए हैं. अगर आप मेरे से आके बोलोगे कि कल मैं तेरे को मुकेश अंबानी, भाई तू मेरे को 1 लाख रुपए दे, कल तू मुकेश अंबानी से भी ज्यादा बड़ा बना दूंगा, मैं बुद्धू होऊंगा ना उसको बिलीव करने के लिए. हाँ, मैं चूतिया हूं ना अगर तेरे को पैसा दे. वो तो चूतिया नहीं है. तो ध्रुव राठी आके क्या बोलता है कि मेरी बात सुनो, कल आप सब अमीर बन जाओगे अगर आप मेरे गवर्नमेंट के लिए वोट करोगे और मेरे पॉलिसीज फॉलो करोगे तो आप अमीर बन जाओगे. वो चूतिया नहीं है. आप जो सुन रहे हो उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं सब के सब चूतियों का भंडार लगा के रखा है उसने. वेहेमेंटली चूतिए हैं वो. मेरे को इवन इफ यू प्रेजेंट अ वेरी लॉजिकल टॉपिक टू देम, आई काउंटर्ड ध्रुव्स वीडियो ऑन एनिमल में भाई साहब ने बड़ी ही स्विफ्टली, एक तो ही इज वेरी गुड, जैसे आपने कहा, ही इज वेरी स्मार्ट एट चेरी पिकिंग. he'll go into the pool of data and pick the things irrespective कि वो डेटा पूरा है या नहीं है. he'll pick the things to drive and to concoct his narrative. वो बन गया, फिर उसको प्रेजेंट करेगा मास्टर ओरेटर की तरह कि देखो यहां से ये सामान आ रहा है. एनिमल की पूरी पिक्चर में उन्होंने बताया कि भैया कैंसर है हमारी सोसाइटी. पहले तो वो गैंग्स ऑफ वासेपुर को दबा के प्रमोट कर चुके हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स से पेमेंट आई. ठीक है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में इफ नॉट मोर देन एनिमल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी अगेंस्ट फीमेल है और मारधाड़ है, गाली गलोच है. इनफैक्ट वो एक स्टॉलवर्ट फिल्म है जो which actually drives the whole narrative around even the animal film. Almost same ही है. ये मिर्जापुर में कौन सा कम था भाई? Exactly. And you are promoting those films. You do not find any problems with those films because you are getting a paycheck from Netflix to promote them. Exactly. That's the whole point. And coming to the thing, Animal में भाई साहब ने बताया कि कैंसर कैसे है और उसके लिए एक यूज किया, चुन्नू बना दिया, गुड्डू बना दिया एक लड़का. वो लड़का है 13-14 साल का. अब कह रहे हैं कि अगर गुड्डू ये पिक्चर देख लेगा. मेरे को एक बात बता भाई, तेरे में इतना दिमाग है तो पेरेंटल गाइडेंस किस लिए होती है? डायरेक्टर का काम है, वहां पे उसने लिख दिया 18+ की पिक्चर है, बच्चों को मत दिखाओ. तो ये तो घर वालों की जिम्मेदारी है ना. चूती है वो देखेगा नहीं देखेगा. मैंने बोला कि कल तू एक वर्ल्ड वॉर पे बड़ी ग्रूसम वीडियो बनाता है, तूने दिखा दिया इंटेस्टिन्स, भाई गर्दन कटते हुए, लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है जापान. अब किसी बच्चे ने वो देख ली, वो ट्रॉमेटाइज हो गया. अब तेरी गलती है नहीं, क्योंकि तूने तो PG-17 डाल दिया था ना. चूती है उसके घर वालों की गलती है कि PG लॉक नहीं लगा हुआ. सर्टिफिकेशन एजेंसी जो सर्टिफाई करता है, पर अगर सर्टिफाई कर दिया उसने, देन यू नो लाइक that is the responsibility done. Right. After that the parent is responsible for the child. It's that simple. Certification agency आप बोलोगे भाई इसको R rating मत दो, नहीं तो फिर कम लोग आएंगे, तो maybe they'll give it a PG, but they have their own standards. और उसमें जो liability है
अगर आपके बच्चे ने देख लिया भाई, अगर आप आपके बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो इसमें डायरेक्टर का क्या प्रॉब्लम है? वही तो। तो और फिर वही क्या? तो, सो इफ यू नोटिस दिस इज लाइक दैट बास्टर्ड पिकेटी, थॉमस पिकेटी को आज सबको ये बोल रहे हैं, ये एक दो कौड़ी का नियो कम्युनिस्ट तुचिया है। वो क्या बोलता है, आप अमीर सोसाइटी में आओ और इनकम इक्वालिटी के वजह से जो एंजाइटी, इनइक्वालिटी एंजाइटी होता है ये बहुत ज्यादा है और इसको रोकना चाहिए। भाई कैपिटलिज्म के वजह से आप आए हो जहां आप दो खाना नहीं खा सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं खा सकते थे, एसी नहीं लगा सकते थे, आप सब गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, आप बहामास में या कहीं, इवन इफ नॉट टू बहामास यू कैन एटलीस्ट गो टू सैस्कैचुअन और समथिंग लाइक दैट फॉर योर हॉलीडे। आप कोई कैबिन में रह सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, आराम से 3 बार नॉनवेज खा सकते हो, एसी चला सकते हो, हीटिंग चला सकते हो विंटर में, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। पर आपके मन में ये है कि मैं इतना नहीं कमा रहा हूं जितना मुकेश अंबानी कमा रहा है, और ये मेरी गलती नहीं है कि ये मेरा मेंटल प्रॉब्लम है। इट इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गो सी माई साइकियाट्रिस्ट, इट इज द स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सिट एंड फिक्स माई दिस थिंग। भाई तेरे को मुकेश अंबानी की तरह बनना है तो तू वैसे काम करना, तू रिस्क लेना स्टॉक मार्केट में। नहीं करेंगे वो नहीं, that's the tough way, no? That's the tough way, no? सो ये थॉमस पिकेटी दो कौड़ी का रंडी का बच्चा है, रंडी है उसने बस मैं तो रंडी की कदर करता हूं क्योंकि रंडी बस अपना टांग खोलते हैं ना, ये अपना दिमाग कभी नहीं खोलते हैं दूसरे लोगों के लिए, उनका दिमाग हमेशा उनका रहता है। पर थॉमस पिकेटी जैसे लोग दिमागी रंडी हैं जो अपना दिमाग भी खोल देते हैं दो कौड़ियों के, जो मुजरा करते हैं ना, ये ले मुजरा कर, वो तो कम से कम उनका टैलेंट है, इसका तो कोई टैलेंट ही नहीं है। ये टैलेंट ही नहीं है। ये जो लोग सोशलिज्म के बारे में बातें करते हैं ना, इनको एक बात नहीं समझ आती कि कैपिटलिज्म वाज द वन थिंग दैट डिस्ट्रॉयड फैसिज्म। अगर वर्ल्ड वॉर 2 में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज नहीं होती ना, एंड यू नो तो द तुम्हारी पतलून उतरी होती, अभी घोड़ी बने होते तुम। डोंट रियलाइज दिस, जो मुसोलिनी था ही वाज अ सोशलिस्ट। नाजी पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सोशलिस्ट, नाजी, ठीक है ना। और इसमें क्या था कि उस टाइम क्या हो रहा था, देखिए पीपल भी कैपिटलिज्म कंफ्यूज कर देते हैं। एक होता है मर्केंटिलिज्म, जो फ्रांस और ब्रिटेन प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो जाके जहां भी सस्ते चीजें मिलेंगी वो जाके उधर कॉलोनाइज करके उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस जगह को इंडस्ट्रियलाइज नहीं करने देंगे, और कैप्टिव मार्केट बनता है। आपके रॉ मटेरियल सब ब्रिटेन या फ्रांस आएंगे, वो मैन्युफैक्चर करेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आपको बेचेंगे। पर ये फेल ही होना था क्योंकि ये कैपिटलिज्म नहीं है। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जहां भी लेबर सस्ता है आप वहीं पे लेबर भेजोगे, बिकॉज इट इज बेटर फॉर कैपिटल। व्हाट अमेरिका डिड वाज कैपिटलिज्म, व्हिच इज व्हाई अमेरिका कभी कॉलोनाइज करने की सोचा भी नहीं। थोड़े बहुत कॉलोनीज थे जैसे फिलीपींस, हवाई एंड थिंग्स लाइक दैट, पर ज्यादा उन्होंने कॉलोनाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब अमेरिका में प्रोडक्शन ज्यादा महंगा हो जाता है, वो इस प्रोडक्शन को चीन या वियतनाम भेज देते हैं जहां कम है, और उनका फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स ज्यादा होता है वियतनाम और चीन का, उनका फिर कंजम्पशन कैपेसिटी ज्यादा हो जाता है, पैसा ज्यादा आता है, तो अमेरिका के ज्यादा गुड्स वो फिर उधर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सब ग्रोथ 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 ग्रोथ, पूरा ग्रोथ 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 करते हैं, राइट? दे वांट टू डिस्ट्रॉय दिस एंड दे कम अप विथ, इस बार अगर फेल हुआ, वो बोलते रहते हैं देखो सोशलिज्म का कभी भी आंसर नहीं देंगे क्यों आपका आइडिया हर जगह फेल हुआ है, ठीक है ना। सोशलिस्ट, कोई भी सोशलिस्ट इकोनॉमी उठा लो, कोई भी आज तक नहीं है, कोई भी नहीं है सक्सेसफुल। एंड व्हाट दे विल से इज कि ये ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। हमारे आइडिया सब ठीक थे, आपके इंप्लीमेंटेशन में क्या पवन खेरा ने बोला था, आपके तपस्या में कमी रह गई, तो आपके प्रयास में कमी रह गई, ठीक है ना। Then they will very duplicitously point to 3 countries, Norway, 4 countries, Norway, Finland, Sweden, Denmark, जो स्कैंडिनेविया। देखिए इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्वीडन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, बिकॉज ऑफ इट्स, उधर सोशलिज्म थोड़ा अर्ली शुरू हुआ, वो बैंकरप्ट होने वाला था। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, सबको आयरन ओर की जरूरत थी,
स्वीडन बहुत ज्यादा आयरन ओर और कोल प्रोड्यूस करता है और आर्मामेंट्स प्रोड्यूस करता है, डायनामाइट, नोबेल उधर से ही आता है। उन दोनों को एक्सपोर्ट किया, अलाइज पावर को भी और एक्सिस पावर को। ऑन्टॉन्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑन्टॉन्ट एंड अलायंस था, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल ऑन्टॉन्ट, दोनों को एक्सपोर्ट किया एंड दे केम आउट ऑफ इट बिकॉज वॉर इकोनॉमी, जैसे हमने डिस्कस किया था, जापान, जापान was modern Japan was born out of the Korean War. जो द कोरियन वॉर का डिमांड था उसी के पीछे जापान फिर से फर्स्ट वर्ल्ड ये हुआ, वैसे ही इसमें भी हुआ। ठीक है, दिस वाज स्वीडन। दूसरी बात है फिनलैंड। फिनलैंड अगेन यूनिक। फिनलैंड एक वेस्टर्न कंट्री था जो कंप्लीटली सबऑर्डिनेट टू यूएसएसआर था। दे हैड टू बाय यूएसएसआर वेपन्स, दे कुडंट मेक ट्रीटीज और एनीथिंग विदाउट, पर वो कभी भी कम्युनिस्ट नहीं बना। तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जहां उनके पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आता था और वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को यूएसएसआर के लिए बनाते थे। इट वाज कॉल्ड द फिनिश शिपिंग क्लस्टर। और यू नो थिंग्स, आजकल काफी सारे इंजन्स जो हैं, आई फॉरगेट द नेम, वेरी फेमस इंजन्स, शिप इंजन्स, वेरी हाई पावर इंजन्स, दे कम फ्रॉम फिनलैंड एंड थिंग्स लाइक दैट। वो वेरी स्पेसिफिकली पूरे ईस्टर्न ब्लॉक को सप्लाई करने के लिए ये हुए थे। ठीक है, तो फिनलैंड भी यूनिक केस है, स्वीडन भी यूनिक केस है। नॉर्वे इतना गरीब देश था जब तक उन्होंने ऑयल नहीं डिस्कवर किया, नॉर्थ सी ऑयल। ठीक है, दैट इज व्हेन इट बिकेम रिच। इनफैक्ट स्वीडन को, वो नॉर्वे स्वीडन का कॉलोनी था, और जब नॉर्वे ने बोला हमको आजाद होना है, स्वीडन ने बोला थैंक यू, प्लीज जाओ, तुम लोगों को पैसा दे दे के तुम वो बर्बाद औलाद हो जो 50 साल में घर पे बैठ के मम्मी पापा का पैसा खाता है, प्लीज निकलो स्वीडन से। तो स्वीडन ने भीख मांग के उनको इंडिपेंडेंस दिया। आपने कभी सुना है कि एक कॉलोनियल पावर भीख मांगता है अपने कॉलोनी से कि प्लीज हमारे से को छोड़ के जाओ? ठीक है, सो नॉर्वे का ये हालत था। डेनमार्क में क्या हुआ था? अगेन वॉर इकोनॉमी। स्वीडन बेनिफिटेड ट्वाइस। इट बेनिफिटेड फ्रॉम द सेकंड वर्ल्ड वॉर, आल्सो डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। वो आर्मामेंट्स बेचता था। बोफोर्स का जो L40 गन है उसी टाइम फेमस हुआ था, दोनों जर्मन्स ने यूज किया था और ब्रिटिश अमेरिकन ने भी वो गन यूज किया था। एंड स्टील एंड कोल। डेनमार्क में क्या था? एंटायरली एग्रीकल्चरल स्टेट था, बट लाइक न्यूजीलैंड, यू नो, एग्रीकल्चरल कंट्रीज, अगर आपका पॉपुलेशन बहुत कम है आप बहुत रिच बन सकते हो। डेनमार्क पूरा का पूरा पोर्क प्रोडक्शन की वजह से, वॉर टाइम सप्लाई ऑफ पोर्क की वजह से अमीर बना। डेनमार्क इज स्टिल वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पोर्क एंड सो दे कुड इन्वेस्ट इन देयर पीपल। नाउ अगर आप देख लेंगे ये क्या 5 मिलियन 8 मिलियन 5 मिलियन 8 मिलियन, तो भाई आप दिल्ली में साउथ एक्स, जीके, ये मोती बाग, ये सब साउथ दिल्ली को मिला लो, उसका पॉपुलेशन बन गया। ये तो बनाने में कौन सी बड़ी कद्दू पे तेल मार दिया आपने, है ना? कुछ भी नहीं है। तो ये सब बात नहीं करेंगे, ठीक है? एंड दे कीप रीइन्वेंटिंग दीज थियरीज एंड दिस फेलो थॉमस पिकेटी इज द लेटेस्ट फ्रॉड टू कम ऑन द सीन। अब चक्कर क्या है कि इन्हीं फ्रॉड्स को, थॉमस पिकेटी हो गया, ठीक है, एंथनी फाउची हो गया, ऑल दीज गाइज, इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया एंड दे नो कि ये कुछ भी आके चुतियापा बकेंगे, देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस दैट विल नॉट ओनली अपलिफ्ट देम बट विल एक्चुअली बीम वर्च्यू सिग्नल देयर एंटायर आइडिया ऑफ वोकिज्म। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में बीजेपी जो सरकार है वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है? वुड इट प्रूव टू बी अ स्ट्रॉन्ग होल्ड अगेंस्ट दिस वोक कल्चर? इसमें क्या है कि all right-wing movements across the world, but in India, especially the BJP right now, is our bastion against. They are literally हमारे बच्चों को वो बच्चा बलात्कारियों से बचा रहे हैं। Literally. ट्रंप का प्रॉब्लम क्या था कि वो अमेरिका को इन्हीं बच्चे बलात्कारियों से बचाना चाहता था। Right. The only place where the left is different is in France. बस फ्रांस एक वो देश है, बहुत अच्छा ग्राउंडेड है, उनका जो सिविक्स एजुकेशन है इतना अच्छा होता है कि फ्रांस बस एक देश है जहां लेफ्ट राइट को अक्यूज करेगा कि आप इस्लाम पे सॉफ्ट हो रहे हो। अच्छा जी। हाँ, इनफैक्ट इन द लास्ट इलेक्शन मेलांचोन अक्यूज्ड मरीन ले पेन ऑफ बीइंग सॉफ्ट ऑन इस्लाम। ये बस फ्रांस में हो सकता है। फ्रांस में उनका आइडियाज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी और जो नेशन का जो फाउंडेशनल आइडिया है वो बहुत क्लियर है। बाकी देशों में ये नहीं होता है और ये एक किस्म से आप देखोगे ना, एंटनी फाउची एक नंबर का फ्रॉड था, ठीक है?
इसीलिए जो बाकी के फ्रॉड हैं, ये फ्रॉड में जो ये होता है ना भाई, अगर तूने मेरे को फ्रॉड दिखा दिया तो ये मेरे को फ्रॉड दिखा देगा, तो हम दोनों एक दूसरे की बढ़ापा करते हैं ताकि हम दोनों का फ्रॉड किसी को पता नहीं चले। तो ये एक अलायंस ऑफ फ्रॉड्स बन जाता है, ठीक है और ना? अब वही इलेक्टेड पावर में अलायंस ऑफ फ्रॉड्स, हाँ, द बिडेन सरकार। कंप्लीटली। Yep. तो भाई मेरे को यही लग रहा है कि द होल डिक्टेटरशिप थिंग विच इज सच अ, आई मीन, जो भी बात हमने करी, कमिंग फ्रॉम दैट, all these things, that the factual things that we talk about, the socialist thing, the capitalist thing, ये सब dictatorship के umbrella के अंडर ही आता है, within this umbrella of discussion, I mean to say that. तो ये चीज को completely avoid कर देता है ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी, and they completely avoid debates like, if you debate Akash Banerjee or Dhruv Rathi, which will never happen because they would never put up camps against you in a debate. तो देखो इसमें क्या हुआ था पता है, ये ध्रुव राठी एक बार आया था प्रखर गुप्ता के चैनल पे और उसने बहुत प्यार से उसका पैंट उतार दिया था। अच्छा, उसके बाद ध्रुव राठी stopped even responding to his calls and everything. अच्छा जी। So Dhruv will never come on any program that actually gives him, वो ताने मार रहा था ना कि राहुल गांधी ने तुमको डिबेट पे इनवाइट किया है, तुम क्यों नहीं आए? वो खुद कौन से डिबेट पे आता है? जुबैर कौन से डिबेट पे आता है भाई? है बस 2 इंटरव्यू दे रखा है, एक यूट्यूब चैनल से जो बेसिकली ऊपर डिबेट चल रहा था, नीचे कोई पता नहीं वो उस टीम से उसका लड़ चूस रहा था, और दूसरा एक डेक्कन हेरल्ड के इसमें आया और डेक्कन हेरल्ड में भी वो पूरा टीम उसके लड़ चूसने पे लगा हुआ था, ठीक है ना? बस ये 2 जो उसको दिखाई देगा, वो भी ना यार, यू नो ही इज गे, यू नो, लाइक हैव यू सीन हिम ऑन कमेंट टीवी, हमेशा काजल पहन के आता है, हैव यू नोटिस्ड? काजल पहन you would be a better judge, आप बताओ मेरे को। I have noticed those traits though, काजल पहन के आता है, लाइक हाँ, oh Shan, you know, I was feeling so bad in jail. I was like getting so upset. My parents were so upset. You know, they were saying all kinds of things about me. And, you know, I was standing up for democracy. yeah, I mean now I have a confirmation. He is, you know, gays for Palestine. He condenses that. He's the gay jihad who can never come out as gay. And these are the same people who would be killed by Islamists. Yeah, LGBT, totally. जैसे हमने अभी बात करी थी, right? You being a part of the LGBTQ, you know that how this movement started and where it is going right now, and the biggest enemy of the LGBTQ is the Islamic world mostly. And you know what? जो LGBTQ community के अंदर जो social control किया जाता है कि आपने अगर मोदी को सपोर्ट किया या ये किया, आपको बॉयकॉट, पूरा सोशल बॉयकॉट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये मेरा दोस्त था गोपी शंकर मदुरई है, you know, they were, because he was right wing, they went धार्मिक, they went after him और उसको they basically drove him to suicide almost, got saved. oh crap. But yeah, they do this. पर पता है क्या हुआ, उधर भी चुपचाप रिवेंज चल रहा है। ये बॉम्बे प्राइड जो है, उन्होंने अपने मेंबर्स का एक पोलिंग चलाया कि आप किसके लिए वोट करोगे, उसमें बीजेपी गॉट 37% एंड कांग्रेस, गेस हाउ मच दे गॉट? 12%. 1/3 of what the BJP got. 1/3. Then yeah. there is another site called Planet Romeo which is a dating app apparently, और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने भी पोल चलाया, उसमें बीजेपी को 50% ऑफ द LGBTQ वोट। तो ये जो पिक्चर पेंट करी जाती है कि बीजेपी इज एंटी LGBTQ, इट्स कंप्लीटली फॉल्स, राइट? Totally false, boss. They are anti-woke. They are not anti. They are the most progressive in terms of accommodating trans people. क्योंकि जो किन्नर हैं उनका सबसे ज्यादा शोषण होता है हमारी सोसाइटी में। उनका कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, बस रोड पे आके भीख मांगो, आए बाबा पैसा दे दे, यही आपका जॉब अपॉर्चुनिटी। उनके लिए यूनिवर्सिटी खोला गया है, उनके लिए योगी ने एक मेट्रो स्टेशन बनाया है जहां जस्ट ट्रांस पीपल को एम्प्लॉयमेंट, उनको एक लाइफ ऑफ डिग्निटी। आप देखिए 2 ट्रांस लोगों को अभी तक पद्मा पुरस्कार दिए गए हैं। आपने कभी सोचा था ये हो सकता है? बट इट हैज हैपेंड,
It has happened, not one but two people so far in 10 years who have been working on community, ये फिर से हो गया, on community issues. ठीक है, so it is not, but they are very clear कि हम change अपने इस पे करेंगे, और आपको अगर इसके दायरे के नीचे ये वोकिज्म, वेस्टर्न वोकिज्म इंपोर्ट करोगे, हम बहुत बेरहमी से उसको कुचालेंगे. You must get a lot of hate for saying all of this. Of course I get within it. the community. Within the community लोग, हाँ, हमेशा लोग मेरे को बोलते हैं तू लड़की का बच्चा है, तू ये है वो है, और फिर ब्लॉक कर देते हैं. भाई अगर गाली देना है logic, no? तो एटलीस्ट हैव द फकिंग गट्स टू देन लेट मी रिस्पॉन्ड टू यू, क्योंकि तू जितना गाली देता है उससे बेहतर मैं बहुत अच्छा गाली देता हूं. मैं 14 लैंग्वेज में गाली दे सकता हूं. 4 लैंग्वेज बोल लेता हूं. You are a well-read person who comes from the community, right? And that community does not want to listen to you because they are so left aligned, and they know you cannot stand up against in an argument with them. They're zombies. यार सोचते नहीं है, किसी ने उनको बोल दिया तो बस यही है. देखो, ये अगर आप देखोगे कि जिन लोगों का एक सेल्फ आत्मविश्वास होता है, जिन लोगों का खुद पे एक गर्व होता है, वो हमेशा अपने लिए सोचते हैं. पर जो डरे हुए लोग होते हैं, जिनका कोई अपना इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, वो क्या करते हैं कि उनको ग्रुप में रहना पड़ता है. जो भी ग्रुप बोलेगा ग्रुप का ही वही करना पड़ेगा. So this is the difference, and they are group animals because they don't realize कि वो जानवर से भी नीचे है. That's true. जानवर तो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं ना. ये तो खुद अपने बच्चों को बलात्कार को दे देते हैं बलात्कार करने के लिए. ऐसी रील्स आती हैं भाई, 1-1, 2-2 साल के बच्चे चलना नहीं सीखा, उसको दे देम बोल रहे हैं. What do you think about the pronouns thing, this culture? यार, you know, we were getting to a point where we said कि सब कुछ जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए. So from going from, you know, for example, a lot of words, we don't think about it right now, but countries used to be referred to as she. India perceived her interests and acted upon them. Now, it was all changed to neuter gender. Countries used to be feminine gender, it was all changed to neuter gender. A lot of male genders were changed to neuter gender and things like that. So there was this process to which I totally support. You know, we should get rid of gender in this thing. But now they don't want to get rid of gender. पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और थर्ड क्या होता है हिंदी में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और इवन आई डोंट नो. पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर के लिए भी कुछ होता है. समलैंगिक जेंडर नहीं, अबे समलैंगिक नहीं होता. अबे वो तो हेमोसेक्सुअल होता, चूती है. पुल्लिंग लिंग में क्या होता है? पुल्लिंग, कबीर देखियो एक बार. जो भी है. एनीवे, हाँ. पर ये इट इज नॉट जस्ट पुल्लिंग, स्त्रीलिंग. आप समझ रहे हो ना? नाउ इट इज पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कपकेकलिंग, छक्कालिंग, कॉपर वायर इनसाइड प्लास्टिक ट्यूबलिंग, ट्यूबलाइट लिंग, बल्ब लिंग, एलईडी लिंग, चप्पल लिंग, कुत्ता बिल्ली लिंग, कुत्ते का नुन्नू लिंग, बिल्ली के टट्टे लिंग, पता नहीं क्या क्या है भाई. नहीं, आजकल फर, यू नो, देयर आर पीपल who identify as furry, और उनके लिए स्कूल में ये लिटर बॉक्स डालना पड़ता है, जो बिल्लियों के लिए वो अब्जॉर्प्टिव लिटर डाला पड़ता है ना, वो उसमें टट्टी करते हैं और फिर पैर लगा के उस पे ये कर देते हैं. I live in the epicenter of this thing भाई. यहाँ के स्कूलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा. My daughter just turned 6 months old, right? One of the biggest fears that I have of raising her in a country like Canada is if she goes to school tomorrow और वो आके मुझे बोलती है, Dad, and she's just going through her puberty and stuff like that, right? Which everybody goes through. और आके मुझे बोलती है, Dad, I like cars. I'm a man. I'm a boy. And there are 3 transgender kids in the school. Kids, transgender kids, जो उसका दिमाग भर रहे हैं, यार तू तो लड़का है, तू तो लड़का है, तू तो लड़का है. I want to go under transitioning. This why? Is the why can't a girl like cars? Exactly. That's what I'm saying. Why can a girl not like cars? Exactly. But now you remember, आज we've come full circle. पहले बोलते थे कि लड़कों को एक्शन फिगर्स के साथ, जीआई जो के साथ खेलना चाहिए और लड़की को बारबी के साथ खेलना चाहिए. फिर हमने बोला नहीं, लड़कों को अगर बारबी के साथ खेलना है खेलने दो. अगर लड़कियों को जीआई जो या हॉट व्हील्स कार्स आते हैं उनके साथ खेलना है तो खेलने दो.
बच्चे को वो बच्चा को वो किचन सेट चाहिए, हाउस किचन, ये हम्म करने दो, वो शेफ बनेगा बाद में। लेगो स्पेस, जो स्पेस लेगो ये आता था, वो मोस्टली राइट बॉयज करते थे, पर लड़कियों को लड़कियों खेलने के दो लिए हाँ खेलने दो। हम्म अब क्या बोल रहे हैं कि बेटा अगर तेरे को बारहवीं के साथ खेलना है, पहले अस्पताल जा, अपना लड़ और टट्टे कटवा, वजह बनवा, हम्म फिर तू बारहवीं के साथ खेल। बारबी के साथ खेल बिकॉज this serves their transgender propaganda transgender Yeah, propaganda but you know, it is even more powerful than that. It is supported by the American Medical Association. क्यों? Because the market for this kind of gender change surgery, it's huge और and then आपका जो साइकिल, पहले तो साइकाइट्रिक कंसल्टिंग का बिलियंस ऑफ डॉलर्स आता है, फिर वो साइकाइट्रिस्ट को बोलना कि आप अपना लड़ कटवा लो, टट्टे कटवा लो, वजाइना बनवा लो, उसका जो सर्जिकल ये होता है, दैट इज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसके बाद जो आपका रिग्रेट होता है, उसके लिए आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओगे, दैट इज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स। फिर आपका जो रीमोल्डिंग सर्जरी होगा कि वापस आपको चाहिए, उसके लिए हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो इसके वजह से दिस इज, देखिए ये कैपिटलिज्म नहीं है, ये फ्यूडलिज्म है। ये होता था 1000 साल पहले यूरोप में, जहां सब बोलते हैं ये मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट चार्टर ऑफ फ्रीडम। रॉन्ग। द किंग वाज एक्चुअली गिविंग हिज पीपल मोर पावर्स देन द कैपिटलिस्ट, द बैरन्स ऑफ दैट टाइम, द लैंड ओनर्स ऑफ दैट टाइम। तो लैंड ओनर्स ने आके राजा पे साजिश करके दे सेट बैक राइट्स बाय अबाउट 200-300 इयर्स अगेंस्ट किंग जॉन। ये क्या कर रहे हैं, ये कॉर्पोरेट्स और कंपनीज ये चला रहे हैं, आप में मेंटल डिजीजेस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि मेडिकल एसोसिएशन, सर्जन्स और साइकियाट्रिस्ट ज्यादा पैसा बना सके। सो you tell me, how is Dhruv Rathi any different from, the American head of the American Medical Association or whatever, who is doing this for money? They don't care what happens to you. Can anybody who listened to Dhruv Rathi and bought Bitcoin sue Dhruv Rathi today? पर ध्रुव राठी ने जो उनसे पैसा बनाना था, उसने बना लिया। अब ये कांग्रेस से भी पैसा बना रहा है, आप से भी पैसा बना रहा है, और जब वो इलेक्शन हारने वाले हैं, वो क्या सू कर सकते हैं ध्रुव राठी को, भाई अपना हमारे को पैसा वापस दे? नहीं। तो ये जो चल क्या, मतलब ये पूरी डिक्टेटरशिप की जो वेव चला दी गई है कि भाई भारत में डिक्टेटरशिप है, these people don't know what liberal sarkars have done in North American continent, in the UK, in the EU में जो इमिग्रेशन चल रही है। आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट दिस, जो इतनी जबरदस्त तरीके से रेफ्यूजी इमिग्रेशन चल रही है। माय सिस्टर लिव्स इन डाउनटाउन लंदन, लाइक द हार्ट कोर ऑफ लंदन, एंड शी इज लाइक दिस कंट्री इज बिकमिंग एन इस्लामिक नेशन नाउ। Yes. So what do you But- think is happening? No, they want this to happen. देखो, लेबर वांट्स दिस टू हैपन, क्योंकि उनको पता है कि जब लोग ज्यादा पैसा बनाते जाते हैं, वो हमारे लिए वोट नहीं करने वाले हैं। सो दे वांट मोर गरीब लोग, दे वांट मोर सोशल तनाव, क्योंकि लेबर के लिए आप तभी वोट करोगे जब सामाजिक तनाव बढ़ता है। तो उनको वो सामाजिक तनाव चाहिए, उनको और गरीबी चाहिए, उनको ज्यादा क्राइम चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती हो, उतना ज्यादा उनको वोट मिलता है। ठीक है? सो दिस इज नॉट द पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट थियरी इज रियल। ये बोलते थे ये राइट विंग कंस्पिरेसी है, फिर वो कौन, क्रिस रूफो या कोई था, जिसने सबको दिखाया कि भाई क्लिप्स लगा के कि ये बोल रहे हैं कि भाई ये खुद ही बोल रहे हैं कि हमको पॉपुलेशन रिप्लेस करना है। और इसमें सबसे बड़े चूतिए गोरे आदमी हैं, जो उनके सामने हो रहा है और वो मान भी रहे हैं कि जो उनके साथ हो रहा है ये हमारे लिए भी अच्छा है। White civilization is collapsing as we see it. Rapidly. And their biggest enemy is not China, it is not Russia, it is not Hamas, it is not Al-Qaeda, it is not ISIS. The biggest enemy of the West is the white man himself and the white woman himself. And especially the white wokes and the white liberals itself, I guess. Exactly right. I think China has been so smart with its communism की policy. ये जितना चोरा दुनिया में चल रहा है, जहाँ पे ये busy हैं लोग, China is preparing on a different tangent altogether. But
See, China ने भी बहुत mistakes किए हैं. China is also ultimately going to collapse in a few years. अच्छा. Well, I mean, they may be able to avert. They've already averted one collapse. क्योंकि उधर क्या हो रहा है, देखो, अब कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल क्या है कि you go to wherever it is easier to manufacture. Okay? अब China has reached that stage at 10 to 12,000 dollars per capita, जहां अब चाइना में मैन्युफैक्चर करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है. दे हैव टू आउटसोर्स द मैन्युफैक्चरिंग टू स्मॉलर कंट्रीज. और आपको और अमीर बनने के लिए यू हैव टू माइग्रेट टुवर्ड्स सर्विसेज. चाइना डज नॉट वांट दैट, क्योंकि वो आर्टिफिशियली वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करना चाहता है. तो वो अलाउ ही जो नेचुरल ट्रांजिशन सर्विसेज की ओर होना है वो अलाउ नहीं कर रहा है. तो वो पॉपुलेशन का पर कैपिटा इनकम भी ग्रोथ नहीं अलाउ कर रहा है. So, things are now so mismatched in the Chinese market. There is something called a lie flat movement. A person जो फैक्ट्री में एक दिन फैक्ट्री में नहीं, वो क्या करेगा, जो डंजो ड्राइवर या ब्लिंकिट या जोमैटो ड्राइवर का काम जो होता है उधर, वो एक दिन करेगा और बाकी 6 दिन के लिए उसके लिए काफी पैसा है रेंट के लिए. तो वो सोते रहता है और घर पे ऑर्डर करते रहता है, तीनों ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर ऑर्डर करता है, खाता है, और फिर 7वां दिन फिर से जाके एक दिन के लिए काम करता है. सर्विसेज हैव नाउ बिकम सो दिस थिंग. पर चाइनीज गवर्नमेंट उसको सर्विसेज को ग्रो करने ही नहीं दे रही. जबरदस्ती सभी को फैक्ट्री फ्लोर वर्कर ही बनना पड़ेगा. सेकेंड थिंग दैट दे डूइंग इज दे गॉट एडिक्टेड टू ओवर स्पेंडिंग. जब 2000 6-7 या 8 में जब सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था, राइट 2007 to 9 यूएस में, China spent its way out, which is what you should do. When the market crashes, the government should spend, और उसके बाद immediately रोक देना चाहिए spending. जब मार्केट रीबाउंड होता है तो रोक देना चाहिए. उन्होंने देखा ये बहुत सस्ता वे है, कीप ग्रोइंग. They went on investing. So the property market is $1 trillion in debt. Their जो hyper super fast train system है, bullet train system है, that is $1 trillion in debt, growing because the system isn't making any money. Their banking system is overcapitalized. Debt to equity ratio doesn't make any sense. They are so deeply in debt, people don't realize this. Right. Even their military spending. The military is unsustainable. It is completely unsustainable. ठीक है. और वो क्या कर रहे हैं, अब आप देखो कि सब आस्ते आस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल से मूव अवे कर रहे हैं. Right. Japanese, in fact, never got into the electric vehicle craze. Even though the Japanese produced 1 or 2 very good electric cars. I think the first modern electric car was a Japanese car. Was a Japanese. But the Japanese never went. Maximum hybrid करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक में थोड़ा जैसे एक्सेलरेशन में जब ये चाहिए, electric is much better at delivering that power immediately to the thing than internal combustion. ठीक है. तो वो हाइब्रिड करेंगे टू इंप्रूव कार परफॉर्मेंस. पर कभी भी जैसे जर्मनी, यूरोप पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक कर रहा था, नहीं हुआ है. द चाइनीज हैव गॉन फुल इलेक्ट्रिक. जो 15 साल का डेवलपमेंट जो इंटरनल कंबस्शन इंजन में होना था, वो सब भूल के वो पूरा इलेक्ट्रिक पे चले गए. They produce more electric vehicles and sell more electric vehicles than anybody else, but they've forgotten the real skill, and now Germany is also slowly pulling back from electric. So आप देखो, वेस्ट ने भी सोच के ही चाइना को उस ट्रैक में कर दिया है. चाइना ने पुट ऑल इट्स एग्स इन वन बास्केट. अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट कम होते रहेगा, चाइना विल हैव नोवेयर टू गो आफ्टर दैट. So it is smart in a way, but China also has its own severe problems. How realistic is it, do you think, comparing India's military might with China's military might, and also keeping in mind the China's geopolitical availability, the military bases that it's been setting up in Africa subsequently, right? And the lack of our military bases and our influence in Africa. How do you come across? So मैं जो ये bases सेटअप कर रहे हैं हम्बन टोटा में, ग्वादर में, जिबूटी, अफ्रीका में, मैं इनको सीरियसली नहीं लेता. क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप अपना सब शक्ति एक साथ रखो, यू आर वेरी पावरफुल. बट इफ यू डिस्ट्रीब्यूट इट, इट्स लाइक अगर आपने देखा होगा, जब शेर एक इसको अटैक करता है, डियर्स को, वो हमेशा एक डियर पे जीरो इन करता है जो सबसे वीक है और उसको निकाल देता है.
इट्स लाइक दैट. तो हम डिवाइड करके उनके हर एक बेस को इंडिविजुअली डिफीट कर सकते हैं. अगर ये क्यूमुलेटिव एक साथ फ्लीट होता, जो हम्बन टोटा, ग्वादर और जिबूटी में एक साथ अगर फ्लीट आता, शायद हम उसको डिफीट नहीं कर पाते, पर अब हम डिफीट कर सकते हैं. अगर आप देखो कि जो भी हुदी फूदी और ये पायरेट्स कर रहे थे अभी, इसमें चाइना ने रिस्पॉन्ड किया नहीं? सबको हमारे नेवी ने प्रोटेक्ट किया ना. Right. So in that respect, I'm very comfortable. Where I am not comfortable is industrial power always talks. The northern states did not win the American Civil War क्योंकि उनके generals बेहतर थे. They won क्योंकि वो industrialized थे, उनका ज्यादा ammunition production तो Right. बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था. rifles ज्यादा थे, they could innovate quicker and have more shells, बारूद, सब कुछ, cannons, सब कुछ ज्यादा faster और बेहतर और ज्यादा ammunition. It is the same reason Germany won over France in 1870, because Germany industrialized much faster than France did. Right. Okay. It is the same reason in 1918, Germany was able to defeat Russia. This is why it doesn't matter हम कितने advanced weaponry लें. अगर एक short war है, sure we can defeat them, limited war. पर अगर ये all out यूक्रेन रशिया की तरह war हुआ, then China's industrial production capability has to win out. There is no if or but about it. यहाँ पे simple numbers की बात है. As It's simple as simple that. numbers. They may lose 10 times the number of troops we do, but Oh that yeah, won't matter. China and Russia does not care about. They don't care. losing They their don't troops. care. Yeah. Yeah. For them, the men on the feet are body bags. Yeah. You keep throwing them. Russia क्या कर रहा है? Russia आज से नहीं, ZARs के टाइम से यही करता आ रहा है. Exactly. और चाइना में तो ये है कि अगर उनके आप जितने ट्रूप मारोगे, बोल रहा है भाई तुमने हमारा पॉपुलेशन कम कर दिया. Population कम कर दिया. हाँ. That's true. That's true. भाई, Communist Party killed 60 to 70 million Chinese people. Mao Zedong killed more Chinese than the Japanese, 6 to 7 times Than the more Japanese Chinese than the Japanese Right. Imperial Army. इन लोगों का क्या करोगे यार? ऐसे, this is like, it's like putting Satyavadi Harishchandra up against Chanakya. मैच ही नहीं है. मैच ही नहीं Both है. think on a very, very different tangent. Both exist on a very different parallels. Yeah. और तुम कह रहे हो उनको collide. This is literally like Jarvas in Andaman and Nicobar Island, जो अभी भी Right. bow and arrow से करते हैं. हाँ. Against a Sukhoi 30. Sukhoi 30 एक बॉम्ब डाल देगा, पूरा जारवा सेटलमेंट ही बर्बाद हो जाएगा. तो हम जारवा का नाम ही मिट जाएगा. That's so true. And bhai, tell us something about how China has been pushing into the borders. India में और जो conflict चल रहा है, जहाँ no man's land है, pretty much only troops, Chinese troops exist there on the other hand side, and we exist here, right? And China is consistently pushing the borders inward. Yeah. So what has our government right now for the past 10-12 years, BJP has done, and what Congress was doing it while this was happening? देखो, कांग्रेस कभी अपना मुंह नहीं खोलता था क्योंकि चाइना ये सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक करते थे. Now when you go to a Delhi in America and buy all this stuff, कितना पतले पतले से वो मशीन में स्लाइस करते हैं ना. But in the end, that entire huge block of salami ना के बराबर हो जाएगा. Right. And the Congress was also allowing it. If you remember Shyam Saran, who is a fantastic hiker, जो foreign secretary थे UPA में, Right. वो बहुत सारा हाइक करते थे. उन्हें रिपोर्ट प्रोड्यूस किया और फिर इस रिपोर्ट को विथड्रॉ करना पड़ा क्योंकि it showed how much more territory the Chinese had slowly grabbed. कांग्रेस को लगता था कि अगर हमने मैप पे लाइन ड्रॉ कर दिया उधर, बिना सेटलमेंट के, बिना बॉर्डर फेंस के, बिना बॉर्डर के हेलीकॉप्टर्स के, ट्रूप्स के, वो बॉर्डर सैक्रोसैंक्ट है. भाई ऐसे तो चलता नहीं है. अगर आपने अपने लैंड को मार्किंग नहीं किया, पर भाई हर हिंदुस्तानी को पता है कि अगर आपने लैंड को मार्किंग नहीं किया, कोई आपका लैंड पे बैठ के जब्त कर लेगा और फिर आपको 40 साल कोर्ट में ये करना पड़ेगा और यू विल लूज द लैंड. ठीक है. This is what they believe. Now, the problem starts because of Modi, and I'll tell you why. It's not the way you think it is. Modi आके बोलता है भाई ये बंद करो, रोड बनाओ. तुमने रोड तक नहीं बनाया है, रोड बनाओ, तुम मार्कर्स लगाओ, जाके ट्रूप्स को आगे रखो ताकि एकदम मार्क, हर लाइन मार्क होना चाहिए कि वो अंदर ना आ सके. ये चाइनीज को बहुत गुस्सा करता है, so they attack you. Now, is that his fault? He said उसने वो बॉर्डर फेंसिंग लगा के बोला है बस अब और नहीं. Then they say
मोदी हार गया क्यों? क्योंकि उसने बॉर्डर फेंस लगा दिया, पर जो सब लैंड हमारे नेहरू के नीचे, इंदिरा गांधी के नीचे, राजीव गांधी के नीचे, मनमोहन सिंह के नीचे चला गया, उसको तुमने लिया नहीं, इसीलिए मोदी हार गया। मोदी तो चूंकि कायर तुमने है। पहले ही दे दिया, पहले हाँ, तुमने तुमने रख के पहले दे ही दे दिया दिया। प्लेट पे, पहले ही दे दिया, हाँ, इसमें मोदी क्या करेगा? वो इसमें तो मोदी क्या बचा लिया करेगा? उसने बाकी का लैंड आके। बाकी का लैंड तो बचा लिया ना। तो ये सिस्टेमिक है, ये पिछले आजादी के बाद से जो चलता आ रहा है उसको कंप्लीटली भूल जाते हैं ध्रुव और आकाश जैसे नैरेटिव क्रिएटर्स, एंड दे कंप्लीटली फॉरगेट द हिस्ट्री एंड दे जंप ऑन द थिंग की। और उनका सबसे बड़ा भाई मेरे को लगता है कि कमबैक या फिर डिफेंस ये होता है, दे गेट अ हार्ड ऑन बाय सेइंग दिस कि यार हम तो इस वाली सरकार को क्वेश्चन करेंगे ना, यार ये वाली सरकार क्या कर रही है, वो पीछे से क्या होता आया है उससे भी तो रिलेशनशिप होगा ना उसका। बट दिस इज हाउ सी दे डीकंटेक्चुअलाइज एवरीथिंग। हम्म उनका ये होता है कि अब देखो, मैं तुम्हारे घर आया, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तूने मेरे को थप्पड़ मार दिया। राइट। वो इमीडिएटली नैरेटिव चलाएंगे, देखो ये बॉडी बिल्डर है शान, इसने ये मोटे फुद्दू अभिजीत को थप्पड़ मार दिया, ये अग्रेसर है। हम्म पर हम्म क्यों हुआ? क्योंकि मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे को इससे बदतमीजी की, इसीलिए तुमने थप्पड़ मारा। ये सब नहीं करेंगे। बट दिस इज व्हाट ही डिड विद स्वाति मलिवाल, नो? स्वाति मलिवाल पे जो उसने वीडियो बनाया है, जिसके लिए अभी स्वाति मलिवाल ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लगाया है, उसने क्या किया? बोला है कि देखो ये 2 वीडियो हैं, आप जज कर लीजिए। उसने ये नहीं बोला कि वो विभव ने पूरा अपना फोन को रीफॉर्मेट करके डिलीट कर दिया था और आपने पूरा सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया था। इससे जो निकालना था उनके लिए वो निकाल के रख दिया, जो दिखा रहे कि स्वाति मलिवाल को बाहर किया जा रहा है, पर बाकी का सब कुछ उन्होंने मिटा दिया। Why didn't he bring it up? So he does this. But see, I don't blame him. इसका धंधा है, ये बहुत सारा पैसा बना रहे, इसके वजह से he might have demanded payment for 2-3 crores. You know, the Delhi government has been footing Arvind Kejriwal's legal bill. It is the bills are out. They are something like they're already he has spent 20 crores of taxpayers' money defending himself. कमाल है, कमाल है। एंड एवरीबॉडीज नैरेटिव द मोर वी नियर इलेक्शन रिजल्ट्स, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, पार्टियों के हिले तो ये पहले ही हुए थे, इनकी गांड पहले फटी हुई थी, बट द होल पॉइंट नाउ इज दैट दे आर ट्राइंग, ये इतने बिफर चुके हैं कि अलायंस की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का अभी जो आया था कि कभी भी, मेरे ख्याल पहले जब इलेक्ट हुए थे तो इन्होंने ये बोला था कि मैं कभी भी किसी के साथ अलायंस में नहीं आऊंगा, और अभी बात हो रही है कि अलायंस में आ जाऊंगा मैं अगर जरूरत पड़ेगी मेरे को। लाइक रिसेंटली he said this thing. So Right. see, you know, Shan, there's a reason I don't talk much about Dhruv and people like Akash, because यार मेरे पाद भी उनसे ज्यादा महत्व रखता है मेरे। Absolutely. I can see them getting destroyed in a debate with you. Like not Yeah. even stand for 5 minutes. They won't. You know, the thing why people talk about Dhruv and Akash is क्योंकि जब गांड में खुजलाव आता है ना, किसी को ये नहीं सोचता है कि हम पब्लिक प्लेस में, उनको अंदर उंगली लगा के खुजलाना पड़ता है। ठीक है, ये उसकी तरह है। They are itches up the ass that have to be dealt with immediately in terms of खुजली, nothing more. खुजली वाल के ये खुजली है That's true. essentially. But there are two things that the left always uses as the biggest ammunition in their arsenal. One is Hinduism, कि भाई Hinduism, the whole wave of Hindutva. उनका तो है कि there is no such thing as Hinduism, there is Brahmanism. Exactly. हाँ, there's Brahmanism, right? एक तो हो गया आपका हिंदुत्व, और दूसरा है हाइपर नेशनलिज्म, और इनको इन दोनों चीजों से प्रॉब्लम है। And then these are the same people who would look up to America as one of the greatest countries, which is the most hyper patriotic country on the face of this planet. Yeah. पर अमेरिका में भी आप देख लो, पेट्रियोटिज्म इज नाउ अ डर्टी वर्ड। वो जो यूरोप में देखो, यूरोप हैज एन इश्यू विद नेशनलिज्म, क्योंकि यूरोप में नेशनलिज्म की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, पर अमेरिका में तो नेशनलिज्म की वजह से वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। सो व्हाई शुड इट बी अ डर्टी वर्ड इन अमेरिका? नाउ ऑल दीज यूरोपियन आइडियाज जो हैं, जैसे मैंने बोला था ना, वो संस्थान सूत्रार्थ, वो जो 60 बच्चाकारी को अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया, वैसे ही अपने सब आइडियाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
आप थॉमस पिकेटी का देश ही देख लो, वो फ्रेंच है जो। Hmm. Do you know the French per capita income is lower than the poorest American state, Alabama? Okay. आप अलाबामा का पर कैपिटा इनकम देख लो और फ्रांस का पर कैपिटा इनकम देख लो। फ्रांस, देयर इज नो पार्ट ऑफ यूरोप which is richer than the poorest American state. No country in Europe is richer per capita than the poorest American state. Not one. Wow. At the same time, they have convinced America that they are superior in ideas and they're exporting ideas to America. Hmm. So Europe calls itself the empire of ideas. Hmm. Appropriately so. देखिए ये एनलाइटनमेंट सब कुछ यूरोप से आया है। क्रिश्चियनिटी भी यूरोप से, it may have started, a Jew started Christianity. Jesus himself wasn't a Christian. Jesus was a Jew. पर वो इटली में जाके इटली ने फैलाया, इटली ने रेनेसांस फैलाया। इटली टेल्स अस Right. what we should think, what is beauty, what is not a beauty, what is art, what is not art. इटली ही बोलेगा हमको आर्किटेक्चर क्या है नहीं है। आजकल जर्मनी बोलता है, फ्रांस बोलता है, ब्रिटेन बोलता है। They've always been an empire of ideas and they're very good at spreading. वो भी अगर फेल हो गए, I mean, imagine फ्रांस, a French economist जो न्यूयॉर्क में जाके बोलता है भाई तेरे को पता नहीं है इकोनॉमिक्स के बारे में, मैं तेरे को इकोनॉमिक्स सिखाऊंगा। इट्स लाइक अ भिखारी आउटसाइड मुकेश अंबानी हाउस। जब मुकेश अंबानी का रोल्स रॉयस निकलता है, वो जाके वो ट्रैफिक स्टॉप में जब रोकता है, वो खटखट करता है, ए मुकेश भाई तेरे को कुछ नहीं पता रे, मैं तेरे को बताएगा कंपनी कैसे चलाना है, चल। Will Mukesh Ambani take the Bhikari seriously? So why should any American take this Thomas Piketty bastard seriously? Yeah, absolutely. And do you think there's a problem with the rise of Hindutva? देखिए इनका ये हिंदुत्व से क्यों जलते हैं, मैं बताता हूँ सीधे सीधे। हिंदुत्व का क्या है? आपका जो हिंदू आइडेंटिटी है वो आपके जात आइडेंटिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप ब्राह्मण हो, यादव हो, दलित हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो। आपको पहले अगर वो दलित भी होगा उस पर आक्रमण होना होगा, तुमको सोचना है ये दलित है इसको छोड़ दो, नहीं ये हिंदू है इसको मेरी बचाव करना है, हिंदू धर्म पहले। ये इससे क्यों जलते हैं? क्योंकि इनका पूरा जो धंधा है पिछले 70 साल से यही पे हुआ है कि ब्राह्मण तेरा शोषण कर रहा है, मुसलमान तेरा शोषण नहीं कर रहा है, क्रिश्चियन तेरा शोषण नहीं कर रहा है, ब्राह्मण तेरा शोषण कर रहा है, यादव तेरा शोषण कर रहा है, बनिया तेरा शोषण कर रहा है, बनिया तेरा पैसा चुरा रहा है, etc. It upsets their apple cart. That is why they find it. And they will say Hindutva is casteist. Can you believe it? Hindutva is expressly anti-caste. इसीलिए देखो ये जो अंबानी खानदान है बहुत कट्टरपंथी हिंदुत्व है। इसीलिए जब राम मंदिर बना था उन्होंने पूरा आंतिल्ला को वो जय श्री राम पे लगा के रखा था ना, वो तो वैष्णव। उनका जीरो टॉलरेंस है ऑफ कास्ट, क्योंकि उनके बच्चों ने आउट ऑफ, कोई भी उनके कास्ट का नहीं है, एक भी बच्चे ने कास्ट के अंदर शादी नहीं की। तीनों के तीनों बच्चों ने आउट ऑफ कास्ट शादी की। माँ बाप ने कुछ बोला नहीं। एट द सेम टाइम हिंदुत्व इज नॉट एंटी इस्लाम। It has never been. It has never been. was. It's just like भाई Islam ही नहीं, कोई भी other religion. It's it not has never been against any anti other other religion ever. Right, but it's very clear कि तुम मान लो कि तुम पहले हिंदू हो, बाकी सब जात पात का बाद में देखेंगे। Even Veer Savarkar said this, and he's been. He was very clear about as, it. He's he very was clear about it. अरे वो Yeah. तो नास्तिक था. He did not believe in God. Exactly. Right. Exactly. So they will try to, and imagine the left is so powerful they've convinced everyone that Hindutva is a Brahminical fascist project. Yeah, even in Bollywood it has been done Yeah. for ages. It's been done Yeah. that Brahmanism is tyrannical. That's what's been told time and again. Yeah. And now that narrative is changing by the ruling party, the left has lost its. Basically. So That's I mean, I just sit and laugh when this happens. Yeah. And do you think this was long way coming? Because the way Hindutva has blown up, it was welling up inside the people, inside the population. नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये वेलिंग अप था। ये वेल्थ के वजह से हुआ है। तो एक किस्म से अगर नरसिम्हा राव नहीं होते और अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते और अगर मनमोहन सिंह नहीं होते तो मोदी नहीं होते। मैं आई विल एक्सप्लेन व्हाई।
You needed Narasimha Rao's 1991 reforms to create a middle class जो अमीर बन गया. ठीक है. और जब लोग अमीर बन जाते हैं, जब वो खाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, शौच कहाँ करेंगे उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप दूसरे चीजों के बारे में सोचते हैं. आपका दिमाग और चीजों पे लगता है जो विच यू आर मोर अवेयर ऑफ. सो फॉर एग्जाम्पल, जो ड्राइवर है, ड्राइवर से ज्यादा अवेयरनेस होगा, रोड अवेयरनेस होगा पैसेंजर को. इसीलिए रैली कार में हमेशा एक ड्राइवर होता है, एक नेविगेटर होता है. क्यों? क्योंकि दैट नेविगेटर नोज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड यू कैन लुक एट द मैप एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? बट द ड्राइवर इज कॉन्स्टेंटली गियर, इस रास्ते पे मैं कैसे ऊपर चढ़ूं, ही इज फोकस्ड ऑन द हियर एंड नाउ. This guy is looking at the bigger picture. So when you remove all this stress, मैं अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाऊंगा, खाना कैसे लगाऊंगा टेबल पे, you start thinking about everything else. So it was that Narasimha Rao reforms जो फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने consolidate किया, that led to Hindutva. In that sense, it was Narasimha Rao that created Modi. Had it not been for Narasimha Rao, the BJP could have fought another 100 elections and they would not. True. And your greater identity comes with wealth. जब आप वो महसूस कर रहे हो कि यार मेरा कॉन्फिडेंस है. आप देखो फॉरेन में हिंदू लोग क्या बोलते हैं कि जब मोदी आए तब हमको हिंदू होने का एक गर्व था. उसके पहले हम सब साउथ एशियन बोल के झुंड में मर्ज होने की कोशिश. I saw an आकाश बैनर्जी वीडियो टुडे सेइंग कि भाई मैं पाकिस्तान टैक्सी ड्राइवर के साथ जा रहा था और वो बोलता था भाई मोदी आने से पहले हम सब एकजुट होके साउथ एशियन होते थे, पर जैसे ही मोदी हो गया ये हिंदू लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं. He thinks it's a bad thing. I think it's a fantastic thing. It is a fantastic thing. It is a fantastic thing. Absolutely, yeah. And why should it not be? I don't understand this thing. A lot of people who say hyper nationalism is a bad thing. अभी 2 दिन पहले we shot a podcast with Para Commando. Even here, Shan, there is a very important difference. देखो ये बोलेंगे कि जर्मनी, इटली, ये सब जो फैशिस्ट थे ये हाइपर नेशनलिस्ट थे. See, they were not nationalists, they were militarist. ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं मिलिटरिज्म और मर्केंटिलिज्म को नेशनलिज्म के साथ. नेशनलिज्म इज अ गुड थिंग. मिलिटरिज्म एंड मर्केंटिलिज्म आर नॉट अ गुड थिंग. और ये लेफ्ट का पावर है कि उन्होंने इन तीनों को कन्फ्लेट करके रखा है. Right. And I don't understand what's the problem with being hyper patriotic. If you love your country, if अगर तुम अभी Sham bhai was on the podcast, he was in India with you only, right? You guys did a lot of podcasts. So he was telling me that कि उन्होंने इस वाले इंडिया ट्रिप पे इतने भगवा झंडे देखे घरों पे लगे हुए, नंबर 1, और इंडिया के झंडे लगे हुए देखे उन्होंने जितना उन्होंने पहले कभी ऑब्जर्व नहीं करा है. And this is a very common happening in the US for the past 100 years or so. Yeah, absolutely. अरे मेरे घर में इसके आगे ये दे देना जरा. एक नहीं है, मेरे घर में अभी 4 भगवे झंडे हैं, बस एक ही दे दो. ये मेरा भगवा ध्वज है जो मैं 4th of July को भी मैं फहराऊंगा. और मैं बहुत गर्व से ये रखता हूँ ये भगवे ध्वज. और यार गर्व क्यों ना हो, मुझे एक बात नहीं समझ क्यों ना हो यार, क्यों ना हो यार. अगर मैं अपना रिलीजन सेलिब्रेट कर रहा हूं, मैं तेरे को थोड़ी मना कर रहा हूं तेरा रिलीजन सेलिब्रेट करने के लिए. और जस्ट बिकॉज आई एम सेलिब्रेटिंग माय रिलीजन डज नॉट मीन दैट आई डू नॉट बिलीव इन यू सेलिब्रेटिंग योर्स. एग्जैक्टली. You know, ये क्या बोल रहे थे? You remember there was that Twitter person who was saying कि ये उग्र हनुमान उसने कई गाड़ी के पीछे देख लिया, उग्र हनुमान का स्टिकर. ओह हाँ वो आजकल and this is sign of rising fascism because ये दिखाता है हमको कि ये अच्छा हनुमान नहीं है, ये उग्र हनुमान है जो जागृत हो चुका है और लंका को जलाने वाला है और मुसलमानों को जलाने. और देखा ये इन्होंने वो लायंस जो नए पार्लियामेंट में लगे उसमें भी लगाया था. पुराने पार्लियामेंट में लायंस हंस रहे थे, इसमें लायंस अग्रेसिव है. भाई तूने कभी लायन को हंसते हुए देखा है? कॉमिक बुक थोड़ी है, देश चलाना है.
What the hell? दे विनी द पू पढ़ रहे हैं ये अपने दिमाग में लिटरली दे आर रीडिंग कॉमिक बुक्स एंड दे थिंक ऑल ऑफ दैट दे आर रीडिंग हैज टू कम इनटू रियलिटी अगर वो रियलिटी नहीं है तो वो गलत है भाई क्योंकि बिल्कुल। मैंने तो कॉमिक में यही पढ़ा था अबे चूते तूने पढ़ा ही फिक्शनल था अब रियलिटी बहुत डिफरेंट है अब यू थिंक मैं श्याम भाई से भी यही बात कर रहा था कि हम सब आप भी श्याम भाई मैं वी आर प्लेइंग आवर पार्ट एज क्रिएटर्स राइट people listen to us people watch our reel watch our video move on maybe think about it for a couple of days but do you think we can exert so much pressure at one point that we would change the polls that we would change the outcome of the elections right Dhruv is on a he's on a crusade let's say which he actually is वो चेंज कर देगा मार्क लोग माय वोट नहीं डालेंगे वर्ड्स बीजेपी को मार्क माय वर्ड्स भाई देखो इलेक्शन में ना ये कैंपेनिंग एकदम बकवास होता है आई टेल यू व्हाई इलेक्शन से पहले सबने निर्णय कर लिया होता है वो किसके लिए हाँ वोट डालने वाला है ठीक है ना जब महाभारत का युद्ध हुआ था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कृष्णा ने अर्जुन को अपना रथ बीच में बैटलफील्ड के बीच में ले जाके उन्होंने पूरे दुनिया को भगवत गीता सुनाया भगवत गीता सुनने के बाद कोई भी कौरव ने ये बोला हाँ मैं गलत था और मैं आपके साइड में आ गया भाई कृष्णा ही जब लोग के दिमाग चेंज नहीं कर पाया ये दो कौड़ी के ध्रुव टट्टी आकाश भट्टी ये कुछ चेंज कर पाएंगे क्या कुछ नहीं देखो इलेक्शन कैंपेन क्यों होता है इलेक्शन कैंपेन से कोई वोटर है वो उजागर नहीं हो जाता है सडन क्या होता है कि वो देखता है कि भाई ये लोकल लीडरशिप का जैसे जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे आप अपना सीवी लेके जाओगे एकदम टाई सूट पहन के जाओगे यू आर शोइंग हाउ वेल यू कैन ड्रेस यू आर शोइंग कि आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हो और आपका सीवी कितना इंप्रेसिव है ये एक किस्म से वो दिन है जब लोकल लीडरशिप जो होता है सेंट्रल लीडरशिप आता है मोदी आते हैं या राहुल गांधी आता है लोकल लीडरशिप दिखा रहा है कि भाई देखो मैं आपके रैली में इतनी गर्मी में 5 लाख लोग ले आया या 1 लाख लोग लाया तो देख लो अगर मैं इस दिन को इतना सारे ला सकता हूं तो उस दिन वोटिंग डे को मैं कितने लोगों को बाहर निकाल के ले आ सकता हूं तो एक किस्म से वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है कि मैं इतना मोबिलाइजेशन कर सकता हूं मेरे इतने काड्रेज हैं इधर और वो जाके हर घर में नॉक करेंगे और बोलेंगे माता जी प्लीज आके वोट डालो मैं चाहिए तो अपने गाड़ी में ही ले जाऊंगा आपको नहीं तो माता जी ये लो वोटिंग स्लिप ले यू नो दिस गेटिंग अ वोटिंग स्लिप इज वेरी प्रॉब्लमेटिक सो वोटिंग स्लिप जाके दे देंगे एटसेट्रा 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 और आप जाके वोट करोगे सो एक्चुअली कैंपेनिंग डज नॉट चेंज एनीथिंग कैंपेनिंग जो एक समझ लो आप बंगाल में हो आपको डर है कि जिस दिन वोटिंग होना है अगर मैं गया ममता बनर्जी के गूंज मेरे को मार डालेंगे पर आप देख रहे हो सडनली मोदी आए हैं और इतने सारे बीजेपी के वर्कर हैं आपका दिल फिर बुलंद हो जाता है कि भाई देख उस दिन अगर मैं आऊंगा ये लोग सब मेरी रक्षा करेंगे और मोदी खुद इधर आया था तो मैंने देख लिया बीजेपी का स्ट्रेंथ क्या है सो आई कैन वोट फॉर ऑन द अदर हैंड इट वर्क्स इन अदर वेज ऑल्सो अगर उसने देख लिया कि ममता बनर्जी ने और भी बड़ा उधर रैली कर दिया वो डरेगा अरे दीदी का बहुत पकड़ है वो जीतने वाली है मैं थोड़ा डरा हुआ हूं मैं नहीं वोट करूंगा सो कैंपेनिंग से किसी का दिल नहीं बदलता है कैंपेन से बस वोट डालने का या ना डालने का हौसला बढ़ाता होता है then there are people like us who drive in cars and lived in air conditioned places right which doesn't make a difference we know nothing can really happen to us if we go vote right but ये वीडियो शीडियो देखने से किसका दिल बदला है यार मेरे को ये बता वही किसी का नहीं राइट बदला किसी का नहीं इनफैक्ट तू 10 लोगों को और गुमराह करेगा 50 लोगों के बीच में रिलीजन को लेके और जहर घोलेगा वो वीडियोस जो इंटेंटेड पर्पस है कि तू मैं बैलेट डे को चेंज कर दूं कंप्लीटली ओवरटर्न कर दूं वो सॉल्व नहीं हो रहा है बल्कि जो कभी भी नहीं गलत चीज जो नेफेरियस चीजें हैं अटैच्ड विद योर वीडियो कि अगर यार 4 हिंदू है 4 मुसलमान इसको सुनेंगे तो अगर उनके बीच में हेटेड नहीं भी होगी ना तो वो दिमाग में बात आ जाएगी यार ध्रुव ने तो ये बोला था या आकाश ने तो ये बात बोली थी बिल्कुल बिल्कुल ये आ जाएगा बट द थिंग इज आपका आप ऑलरेडी उस इसमें होगे कि आप ध्रुव राठी को सुन रहे हो
बिकॉज देखो ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी आर एक्सट्रीमली पोलराइजिंग फिगर्स. मैं जब भी उनको देखता हूं बस ऑफ कर देता हूं. आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू. राइट. ऑन द अदर हैंड मैं वायर पढ़ता हूं, मैं स्क्रोल पढ़ता हूं, क्योंकि वायर और स्क्रोल एक्चुअली काफी इंटेलिजेंटली क्रिटिक करते हैं. आई डोंट अग्री विद देम, बट दे आर नॉट outright frauds like Rathi and Banerjee. Right. Right. So you have, it is much more likely that wire and scroll can change somebody's mind than Dhruv Rathi. The problem is the Congress party will not look at wire and scroll because they will see कि कितने hits आ रहे हैं. ये तो बहुत intellectual viewership होगा, ये आके वोट नहीं करेंगे. इस ध्रुव राठी के तुच्छिए हैं, आकाश बैनर्जी के व्यूअर्स तुच्छिए हैं, तो वो आके वोट करेंगे, तो हम इन्हीं को पैसा देते हैं. अब तो the campaigning, the online campaigning has reached to a point where they are saying, outrightly they are saying, they started off 6 महीने पहले they were saying कि बीजेपी को वोट मत डालो, किसी और को डाल दो. Now it has come to a point, बीजेपी को वोट मत डालो, जाके यूपीए अलायंस को वोट डाल दो, किसी को भी डालो. एंड इसमें अच्छी बात क्या है, मेरे को लगता है कि at the end of it you will see Dhruv Rathi will get more views than the Congress party and AAP combined will get votes. तो आप ऐसे करो कि आप जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, आप देखो ध्रुव राठी और आकाश बैनर्जी ने कितनी वीडियो बनाए हैं, ठीक है? उनके आप व्यूज काउंट करके रख लो टिल द 4th of June. मैं आप ये व्यूअर्स से विनती करूंगा, इफ दे कैन प्लीज मेक अ टैली ऑफ द टोटल व्यूज दैट ध्रुव राठी एंड individually Dhruv Rathi's total videos, how many videos, how many views cumulative, and Akash Banerjee, how many cumulative. I will guarantee they will get more views than AAP and India Alliance and Congress will get votes combined. which is the truth, which is actually a truth, which is the truth. Right. हाँ, तो अब देखो ना, there's a very famous story of a car called the Ford Nova जो ब्राजील में रिलीज हुआ. उन्होंने this was sometime in the 60s, Ford Nova करके एक मॉडल, 60s or 70s I forget. Nova करके, Nova means new. I mean everybody knows नया, new in Italian, Nova in Italian, also in Spanish. But Brazil is a Portuguese speaking country. Nobody realized this. और उनका जो ब्राजीलियन कैंपेन था फोर्ड नोवा के लिए, बहुत प्राइज जीता, पर फोर्ड नोवा ब्राजील में बिका ही नहीं. क्यों पता है? क्योंकि नोवा का मतलब पोर्चुगीज में था नोगो, चलता ही नहीं. Nobody thought of it. Even the advertising agency didn't think about it. So it never sold. Dhruv Rathi is like, let him. See, let him make his money. Let his followers believe they're winning based on views. The Congress is now down. उनका latest अगर आप 3 दिन पहले का एडवर्टाइजमेंट देखो, YouTube पे कितने व्यूज पे वो इलेक्शन प्रिडिक्ट कर रहे हैं. Modi only got 235 million views. Rahul Gandhi got 435 million views. YouTube as a predictor of elections, ये कैसे हो सकता है? How? Right? How? Tier 2, deep tier 2, tier 3 cities जहां से सबसे ज्यादा वोट तुम्हारे को पड़ेंगे भी, उनके पास एक्सेस ही नहीं है इन चीजों का. मैं राहुल गांधी के वीडियोस को देखता हूँ मजे के लिए, क्योंकि वो एक वोट थोड़ी दे दूंगा मैं. वो जसपाल भट्टी होते थे ना, कॉमेडियन. हाँ, उनसे भी ज्यादा फनी तो राहुल गांधी का ये नौटंकी है यार. ये दे आर लिटरली प्रेडिक्टिंग. अच्छा, अब वो 400 मिलियन व्यूज में से मोर देन 50% वुड बी द, जैसे आपने कहा, मजे के लिए देखते होंगे, तो हंसने के लिए देखते होंगे. वो 200 मिलियन 400 मिलियन में से वो भाजपा के वोट हैं, जो भाजपा को वोट करने वाले वहां पे जाके देख के आए कि उनको हंसने को मिलेगा राहुल गांधी को देख के. एंड इट विल बी सम ऑफ द फैनेटिक्स विल कीप वाचिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. आपको पता है ये प्रवीण चक्रवर्ती जो इनके डेटा सेल का हेड है, कांग्रेस डेटा सेल के, उन्होंने ये ऐप बनाया था पिछले इलेक्शन में, और उस ऐप में उन्होंने बोला था कि ग्राउंड लेवल डायरेक्ट लीडरशिप के साथ कनेक्ट कर सकता है. और वो इतना मैनिपुलेट हुआ क्योंकि हर बंदा फेक फिगर्स बना के उस पर इनपुट कर रहा था, और उसके तहत कांग्रेस को 180 सीट्स जीतने.
बताओ, अब are आप they देख, still using that app? आज भी आज no, आज no, भी no, क्या they यूज करते discarded that app. हैं? But you know how much they bought that app हाँ. for? 30 crores. How's UPI? Who's funding the UPI? ये कहाँ से लेके आ रहे हैं इतना पैसा? The यार election जो funds. पैसा मिल रहा है वो भी ऐसे तुच्चियों को Hmm. दे दे के बर्बाद कर रहे हैं. It's right. At the मतलब end ये, of the day, Dhruv Rathi is much richer. Akash Banerjee is much oh, richer. much richer. But the Congress is not. It's So if the not. Congress wants to waste its money, मैं तो बोल रहा हूँ और बर्बाद करो ना. हाँ. इसीलिए मैं राइट से बोलते रहता हूँ भाई ध्रुव राठी तेरा दोस्त है. Hmm. वो कांग्रेस के मूर्खता पे पैसा, वो तेरे पर से तो पैसा नहीं बना रहा है, तो Right. तेरा क्यों उससे इतना जलता है? Hmm. हमको तो और ध्रुव राठी चाहिए. ध्रुव राठी मेरा नेता है, ध्रुव राठी मेरा हीरो. शान पराशर हाय हाय ध्रुव राठी देश का नेता कैसा हो? ध्रुव राठी जैसा. Now all of the efforts that he's putting in into doing it, he's just filling up his pockets, and the effect is boomeranging. A lot of people, it has come to a point, the Modi hate is so belligerent right now in his face that a lot of people who do not even hate Modi would watch Dhruv Rathi yap about hating Modi and go ahead and say like यार भाई मैं जाके मोदी को वोट डाल रहा हूँ, या मैं डाल दूंगा. Exactly. So you know he's having Right. this sort of क्या कहते हैं ricochet effect या boomerang Yeah. effect. Yeah. What do you think their narrative is going to be after BJP wins this session? मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ. एक ईवीएम टैंपरिंग, दूसरा इलेक्शन कमीशन ने धोखेबाजी की है, तीसरा वोटर सप्रेशन हुआ है, चौथा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था क्योंकि वो मीडिया का कोई स्टैटिस्टिक निकालेंगे और दिखाएंगे कि मोदी वाज कवर्ड so many hours by ANI and Rahul Gandhi was only covered for 5 hours by ANI cumulatively. Then it will be that they spent money on all these losers. ठीक है, उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, यही होने वाला है. आप देख, मैं सिंपल सा बताता हूँ शान. Do you know what the ratio of victory was in 2019? Congress got 120 million votes. Right. The BJP got 230 million votes. Kamal. 110, 90% more than the Congress. Right. इसको रिवर्स करने के लिए भाई आपको 20-30% का स्विंग चाहिए यार. और वो इतनी जल्दी नहीं आ 5% जाएगा. का स्विंग भी ये नहीं चेंज कर पाएगा. और वो चेंज करेंगे भी कैसे? जो सरकार ने बोला है उन बड़े प्रोमिसेस, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कराना, राम मंदिर बनवाना, दे हैव, वो खरे उतरे हैं अपने बड़े प्रोमिसेस पे. Exactly, but you know, more importantly, see, Ram Mandir and Article 370 may be important for you and me. पर ऑर्डिनरी विलेज में टॉयलेट लगाना, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाना, ये डायरेक्टली जो इनका पैसा पेंशन सब आना है वो एक्चुअली इनके अकाउंट्स में आ रहा है. पहले की तरह जो पोस्टमैन आधा पैसा खा लेता था या लोकल ऑफिशियल जो आधा खा लेता था वो नहीं हो रहा है. जो एक्सक्यूज मी, जो टॉयलेट्स बने हैं, इलेक्ट्रिसिटी आया है, उस पे वोट कर रहा है हर बंदा. इस बार प्रदीप गुप्ता ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बोला था कि जो मुसलमान कौम है, मर्द अलग वोट कर रहे हैं, औरतें बहुत अलग वोट कर रही हैं. लास्ट में भी आपने देख लिया था ना, शिया तो वैसे भी बीजेपी के लिए वोट करते हैं, कश्मीर में भी शिया बीजेपी के लिए वोट करते हैं, इस्माइली, बोहरा, ये सब भी बीजेपी के लिए वोट करते हैं. ठीक है, but the Sunni woman last election started voting differently from the Sunni man. मोहल्ले वाले started voting differently. मोहल्ले वाली started this time also. No, it's because of toilets. People don't realize what a blessing it is for a Muslim woman who's meant to be covered to have a toilet at home. Wow. कमाल है. आपने देखा था कि एक कंट्रोवर्सी हुआ था, ये मुस्लिम औरत गई थी और वो वीवीपैट उसको लेके बाहर आना पड़ा और फिर उसने वीवीपैट को दिखाया कि मैंने तो कांग्रेस के लिए दबाया था पर ये वीवीपैट में कैसे बीजेपी के लिए आया. और फिर वो पूरा कंट्रोवर्सी चुपचाप हो गया, वो औरत ने अपोलोजाइज कर दिया, सब ये हो गया. पता है क्यों? She actually voted for the BJP. कमाल. Her family did not want to, they were outraged that she voted for the BJP, so she went and blamed the voting machine.
तो ये हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, इनफैक्ट मैंने एक चीज नोटिस करी है, आकाश बैनर्जी और ध्रुव राठी की कोई भी वीडियो हो, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ऑल्दो वी आर प्रेजेंटिंग अ वेरी न्यूट्रल एंड अ वेरी लॉजिकल स्टैंड पॉइंट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ द कमेंट सेक्शन, दुख होता है मुझे ये सोच के कि बहुत सारे मुसलमान भाई बहन आके वहां पे लड़ाई झगड़ा, ज्यादातर गालियां उन्हीं को मिलती है और ध्रुव राठी पे ज्यादातर सपोर्ट उनका होता है। Hmm. सिलेक्टिव है ना ये, सिलेक्टिव ही तो हुआ But ये। see, I don't blame them. They have been brought up a certain way, और उनको वही सुनना है जो उनके कान को सुकून मिलता है। हम्म देखो भाई, जब ये असली बात है कि मुकेश अंबानी में फाइनेंस में मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है। राइट आई एम एन इडियट कंपेयर टू मुकेश अंबानी। पर मेरी माँ ये मेरे को ये नहीं बोलेगी ना, तू झोपड़पट्टी का चूतिया है। कौन सी माँ अपना बच्चे को बोलेगी? कौन से बच्चे को सुनने को ये लगेगा कि भाई अभिजीत अय्यर मित्रा चूतिया है? मेरे को तो मैं लगता हूँ कि मैं हीरा मोती जवाहरात हूँ। मेरी मम्मी को भी लगता है कि भाई मेरा बेटा हीरा मोती जवाहरात है। राइट मेरे मम्मी को अगर तुम जाके पूछोगे कि कौन सबसे हैंडसम है, ये सिद्धार्थ कपूर, शाहिद कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शाहिद कपूर या अभिजीत अय्यर मित्रा, वो बोलेगी मेरा बेटा सबसे हैंडसम है। हैंडसम है। अगर आप मेरे से आके बोलोगे कि सिद्धार्थ कपूर हैंडसम है, सिद्धार्थ मल्होत्रा हैंडसम है, अभिजीत अय्यर, मैं मेरा कोई कम लुक्स नहीं। That's true. ठीक है, That's true. बट सो ही इज गिविंग देम व्हाट दे वांट टू हियर। और ह्यूमन कैपेसिटी ये है कि कोई भी ये नहीं सुनना चाहता है जो उसको अच्छा ना लगे। ह्यूमंस ऐसा एक चीज है जो वही सुनना चाहते हैं जो उनको सुकून देता है। वो उनको सुकून दे रहा है। दैट इज अ मार्केट। That is a market. That's true. What do you think कि कांग्रेस should do इस इलेक्शन डिफीट के बाद? What should it do for the next 10 years to actually come? जो अभी हमने फॉर एग्जांपल जो बात करी थी कि 19 में जो डिस्पैरिटी थी वोटिंग में, उसको थोड़ा सा भी कवर करने के लिए ये 4-5-10 साल का काम नहीं है, बहुत टाइम लगेगा इसको काम देखो, ये 15-20 साल का काम है। राइट। It took the BJP, if you look at the 1977 election, right, which is when the Jansangh managed to get some numbers in. BJP is the old Jansangh, right? It took them from 77 to the first government 1998 में बना था ना? 1998, right, 98, 77 to 87 to 97, it took them 20 years to come to power. Right. And that too, it was only for 1.5 terms, 1.1 terms really. गिर गई थी 6 सरकार years. फिर, right. And really to get to 2014, जब उनका absolutely stable ये होता है, 77, 87, 97, 2007, so what, 35 years basically to get to a stable thing. The Congress is going to have to take 35 years to get there. True. Rahul and Priyanka are not going to get there. Maybe Rehan Vadra is the guy who will do it, but I don't think Rehan Vadra has the brains to do it. You think anybody in Congress apart from Rehan Vadra, because I was also looking up they that, will not let anybody do it. So देखो इसमें क्या होता है, जब एक कंपनी डूब रहा होता है, लोग उसको बचाने की नहीं सोचते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था उसको कैसे हम सिक्योर करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जिट कैसे ढूंढे, एग्जिट कैसे होगा? जब टाइटैनिक डूब रहा था, कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि क्या हम वेल्डर को लेके नीचे जा सकते हैं और जहां वो आइसबर्ग ने उसको काटा है उसको वापस वेल्डिंग कर सके। वो यही सोच रहे थे कि भाई हम कैसे लाइफ बोट पे घुसेंगे। राइट। तो जब पार्टी डूब रहा होता है, सभी को ये है कि पार्टी का जो जायदाद है वो हम कैसे ये कंट्रोल कर सकते हैं। ये नेशनल हेरल्ड केस तो उसी के बारे में है ना। इन्होंने कांग्रेस का प्रॉपर्टी अब हड़पने की कोशिश की और पकड़े गए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चिदम्बरम, ये सब। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट राइट नाउ। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट द कांग्रेस, बट इफ दे वेर, मैं क्या बोलूं कि देखो ये सेंटर था, ये राइट था, ये लेफ्ट था। बीजेपी अब तक इधर होता था, कांग्रेस सेंटर से इधर होता था। बीजेपी अब क्या हो गया, पूरा ये स्पेस ले चुका है और लेफ्ट इतना चला गया है कि बस लेफ्ट में बस कितना ही बचा है अब
space. यानी कि कांग्रेस is now not competing with the BJP, कांग्रेस is competing with the CPI. अब अगर आपको ये रिकैप्चर करना है, आपको इधर से ही करना पड़ेगा क्योंकि जगह इधर से है. There is room for a far right party in India. There is no room for a left party in India anymore. So you think it's But- the death of the left in India after the win of this It election? is. But the issue is, all the left parties, उनका जो चिल्लड़ बचा है, जो 2-3 सीट पार्लियामेंट में बचा है, जो कांग्रेस का 20-30 सीट पार्लियामेंट में बचा है, वो इस लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी पे निर्भर है. अगर उन्होंने राइट विंग बदला कल, ये 30 वो भी सीट चला भी जाएगा. उनको नहीं. बट दिस इज वाई, याद रखो, इवन आफ्टर इट वन 70 सीट्स इन 1977 इलेक्शन में जनसंघ, इट रीफॉर्म्ड एज द बीजेपी, और उनको 1984 में बस 2 सीट मिले थे. कांग्रेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कम से कम एक इलेक्शन में मेरे को 2 सीट आएंगे, उसके बाद ही मैं जाके 20-30 साल में फिर से गवर्नमेंट बना पाऊंगा. बट इट विल नेवर डू दैट बिकॉज इट विल बी स्टक लाइक द लेफ्ट. जब तक ये राहुल प्रियंका उधर हैं, जब तक खानदान उधर है, ये रीओरिएंट नहीं कर पाएंगे. So they would have to rebrand. They would have to pivot their right now, जो इनका पूरा का पूरा मॉडल है of politics, which is based on, let's say, casteism, religion, religious divisions and everything. Anti-Hindutva है basically, जो हमेशा से रहा है narrative. They would have to topple that and get into the same narrative that BJP has been floating for a very long time. But if they do that, then they lose their credibility, right? वो Exactly. तो उनका खत्म ही हो गया ना फिर तो वो बचेंगे. वो Exactly. भी BJP बन गए. Which is why I think you will see a new party. The party that was probably emerging to take the left space away, which I never believed was going to be a real competitor, वो था आप. क्योंकि जो भी लेफ्टिस्ट, देखो ये जो लेफ्टिस्ट, जैसे मैंने बोला था ना, जब कम्युनिज्म कहीं फेल होता है, ये सब पिकेटी टाइप कम्युनिस्ट आके बोलते हैं क्योंकि असली कम्युनिज्म नहीं था, जैसे हमने एनविजन किया था वैसा नहीं था. ये तपस्या में कुछ भंग पड़ गया, पूरा नहीं था. हाँ, आर्डेंट तरीके से नहीं कमी पड़ गई, दिल लगा के नहीं करा. They tried to do the same thing with Congress after it lost the 2014. असली लेफ्ट तो आप है, कांग्रेस ही नहीं है. इसीलिए सब लेफ्ट विंग जाके आपको सपोर्ट देने लगे. पर आपको इम्प्लोड ही होना था क्योंकि लेफ्ट विंग स्पेस ही, जैसे मैंने बताया आपको, अब कितना कम हो गया. It's too narrow. It's too narrow to It for is growth. too narrow. Right. अगर उनको कुछ करना पड़ता, they would have re-ideated AAP as a right wing party. Which they did not. Which So- they which they miserably did failed not. in doing. Yeah. Exactly. So if they have to do anything, they will now have to create a right wing party. And that right wing party will have to struggle for the next 20-30 years. They are not willing to do that. Let's be clear about it. So the only thing that is going to defeat the BJP ultimately is going to be a 1977 style election, जहां सरकार इतनी अनपॉपुलर बन जाए कि उसके खिलाफ कोई वेव आ जाए. Which I don't think so is going to happen. Very looking. You never know. Yeah. You never know because Maybe उसका, right. मोदी शायद नहीं करेगा क्योंकि उसका पॉलिटिकल एक्यूमेन बहुत सही है. पर maybe 2-3 प्राइम मिनिस्टर्स आफ्टर मोदी बीजेपी में कोई ऐसा एक चूतिया आ जाए जिसका पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है, उसको लगे कि वो भगवान है और कुछ भी कर दे. And then who do you think can be from the BJP? Who do you think that one person can be 15 years down the line? I don't know 15 years down the line who it will be. I think there are lots of candidates to succeed Modi. I think the next generation are probably Amit Shah, Yogi are the contenders. Right. After that, Yogi I is think the third Annamalai. one. I think. Yeah. I Like, think probably Annamalai is a 15 very good contender. Annamalai but is he'll come. very strong intellect. Very strong. But Annamalai is one of those people who is acceptable both in the north and the south. And the south. Right. I think he's the first Tamil leader who has had any kind of impact in the north. Yeah, in fact, people know him. A lot of Northeast don't आपको know. कितने लोगों को पता है जो मद्रास कि के वो कोई जनता भी बना। लीडर नहीं जानते थे? नहीं बिल्कुल भी नहीं. यार ये glass ceiling देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री थे उनको भी कोई फेस रिकॉग्निशन नहीं था. दिल्ली में कि कोई पहचानता आज भी नहीं था कि जानता. भाई देवगौड़ा आज भी नहीं हाँ. जानता. अगर आप बोलोगे हाँ, तो वो कोई भी they will नहीं. think twice. कौन है यार? हाँ, They will think twice. That's the thing. Yeah. Who do you think Congress would make a face? क्योंकि यहाँ पे अब जो भाई भतीजावाद चलता आ रहा है पिछले
70-80 सालों से कांग्रेस में, वो कहीं जाता तो दिख नहीं रहा मेरे को। अगर जाना होता तो वो अभी रीब्रांड करके इस इलेक्शन में कुछ ना कुछ तो नया करते हैं। वो राहुल गांधी को ही पेले जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं। डू यू थिंक कि एक इतनी बड़ी वेव आएगी कांग्रेस के अंदर ही? देखो, ऑपोजिशन को धक्का लगाना तो बहुत दूर की बात हो गई, पहले अपना जो इम्प्लोजन चल रहा है उसको कंट्रोल करो, राइट? जो अंदर से ही पार्टी फटी जा रही है। But You think but a wave would देखो, come within जैसे Congress that would टाइटैनिक में completely किसी ने rebrand उसको, Congress? Do you think anything is going to happen like that? I don't think so. I think the Congress is going to die a slow natural death. जैसे मैंने बताया, टाइटैनिक पे कोई ये नहीं सोच रहा था कि कैसे फ्लडिंग को रोके, सब सोच रहे थे कि नाव से कैसे उतरे। अब कांग्रेस में यही हो रहा है कि नाव से कैसे उतरे। और वो कौन सा पिक्चर था, Afar across the distance the spaces between us, उसमें the only thing the guy is thinking about कि मेरा जो ब्लू डायमंड है वो मैं कैसे उसको बचा पाऊं। तो सब सोच रहे हैं कि मैं वो डायमंड को कैसे बचा पाऊं और कैसे लाइफ बोट पे। What is the role that AAP is playing into all of this? AAP was meant to be the laundry device. It was meant to be it was meant to be the Thomas Piketty of socialist economics. सब फेल हुए क्योंकि उन्होंने असलियत नहीं समझा। अब मैं एकदम नया आपको ये दे रहा हूं, पर वो भी फेल हो गया क्योंकि अब जो ओवरटर्न विंडो था वो इतना शिफ्ट हो गया, जो इडियोलॉजिकल विंडो है वो इतना शिफ्ट हो गया है कि सब इधर ही काम कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी ग्रीडी बन गए यार। व्हेन योर एंटायर प्लेटफॉर्म इज अगेंस्ट करप्शन, आप बोल रहे हो कि पहले रेजिग्नेशन फिर इन्वेस्टिगेशन, और आपने इतना जल्दी पहले गवर्नमेंट के अंदर ही आपने घोटाला किया है, फिर क्या बचा आपका? कुछ भी नहीं। और इसका जेल में डाल के इसका क्रेडिबिलिटी बंद कर दिया, जेल से निकाल के इसका जो सिंपैथी था वो भी खत्म कर दिया। तो घर के भी ना रहे ना घाट के रहे। You think Amit Shah is the mastermind behind the entire reign of BJP, the whole wave of BJPs? I think so. I think Modi is the policy Is the face. implementer, and Amit Shah is the election strategist. Yeah, I think if Amit Shah comes into power as the prime minister, things would be very, very different. And I think it would be more like, आपको क्या लगता है अगर संजय गांधी होता आज? संजय गांधी की आइडियोलॉजी, इफ यू लुक एट द थिंग्स दैट ही डिड, जो थोड़ी मोटी चीज वो आए थे थोड़े टाइम के लिए, राइट? नसबंदी कराना, राइट? उस दौरान जो हिंदू मुस्लिम के बीच में चीजें थी, he had two bad ideas. एक था नसबंदी और दूसरा था ये यूकलिप्टस प्लांटेशन। And eucalyptus has destroyed water tables. Eucalyptus has created a water genocide in India. लोग समझते नहीं है, पर उसने water table को तबाह करके रखा है। But all his other ideas, he was a capitalist. He hated communists. He wanted to throw communists in jail. He had all his other ideas were right. Maybe things would have been different under Sanjay Gandhi, I don't know. But ये जो alternate histories होते हैं, it's best not to go down there because then it's a rabbit hole. Fantasy. Right, it's a rabbit hole, yeah. So शायद संजय गांधी different होते, पता नहीं। I think he would have done much better than his grandfather or his mother. Right, but I still think his son is fantastically intelligent. But they would not let him come in. They will never let him come in precisely because he's too intelligent for it. Exactly. And once he comes in, the line बीजेपी में फंसा हुआ है। बीजेपी में उसको भाव नहीं मिलता है क्योंकि वो गांधी है। और शादी से गांधी नहीं है, पैदाइशी गांधी है। और उसको कांग्रेस में अलाउ नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि उसका कुत्ता भी पिंकी और पप्पू से मिला के ज्यादा आईक्यू रखता है। राइट। Oh boy, I mean, so it's done with. If you look at Congress as a party from all logical standpoints, you would not even find one standpoint where you can be like, this is one thing that they can build up upon, and in the next 15 to 20 years they at least have a good case कि हाँ भाई हमारे पास ये प्रवक्ता है, ये हमारा चेहरा है, ये अगेंस्ट जाएगा बीजेपी के। वो भी तो नहीं है। Not one, because nobody is allowed. आप देख लो, between Mallikarjun Kharge and Shashi Tharoor, who has a greater chance of getting popularity and acceptance? Exactly. It's clearly Shashi Tharoor. But they will not let Shashi Tharoor win the election because Shashi Tharoor will overshadow. As it is, he's much smarter than Pinky and Pappu. Absolutely, yes. So they will not let him. So why would a person like Shashi Tharoor not exit the party and join the BJP?
What will the BJP give him? What is the Congress giving See, him right he's Shashi Tharoor is a big fish in a small pond. now? Shashi Tharoor in the BJP is a small fish in a big pond. That's true. Yeah. So Yeah. that is it. It's the same with, say, Manish Tiwari. Manish Tiwari is probably the one leader who can change the wave in Punjab or Haryana. They won't give him anything. Right. Precisely because he can do it. And that will make Rahul look bad. वो Of course, if जानबूझ he के wins, स्नब करा जा रहा है ना, जानबूझ के टैलेंट को स्नब करा जा रहा है, फेसेस को स्नब करा जा रहा है, ताकि वो जो फैमिली की लेगेसी है वो चलती आए। क्योंकि अब बात ईगो पे आ गई है ना, अब हार इतनी बुरी तरह गए हैं कि अगर चेहरे भी हटा देंगे पार्टी के, जो परिवार से हैं, तो बिल्कुल ही वोट नहीं पड़ने भाई, तो जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं पढ़ेंगे। और जो चमचागिरी कर रहे हैं परिवार का, वो भी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि परिवार ये कर नहीं सकता है, पर उनको लगता है क्योंकि उनकी चापलूसी की वजह से उनको भी बोर्ड पे डाला जाएगा। और जैसे 2-3 और लोगों को वो नेशनल हेराल्ड का थोड़ा 100 करोड़ मिला, इनको भी 100 करोड़ मिल जाएगा। बीजेपी कांग्रेस का जो काडरे बेस है, इट इज कंप्लीटली कोलैप्स। दे डोंट हैव काडरेस एनीमोर। जब आप पावर से, इफ यू आर अवे फ्रॉम पावर फॉर 10 years, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो बंद हो जाता है। भाई 1-2 साल, मैक्सिमम 5 साल वो बिना कोई फेवर्स के जी सकता है, 10 साल तो नहीं जी सकता, 15 साल तो छोड़ ही दो। इसीलिए गुजरात में आप देखो, मोदी के बाद अब तक 2, मैं बोलूंगा एक किस्म से नालायक चीफ मिनिस्टर है। नालायक चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी कांग्रेस गुजरात जीत नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि 15 साल जो मोदी था उधर मुख्यमंत्री, कांग्रेस का काडरे बेस ही उसने मिटा दिया ना। तो किसके बल पे वो जाके कैंपेनिंग करेंगे? That makes sense. What do you think दिल्ली कैसे ले पाएगी बीजेपी in the future? दिल्ली तो अभी ले पाएंगे when the AAP starts collapsing. By itself, I don't think they would have been able to take Delhi back. But with AAP going into self-destruct mode, उसको तो 1 जून को वापस जेल जाना है बेचारे को, अरविंद को। Right. और उसमें क्या होगा कि वो जेल तो जाएगा, बट ही इज ऑलरेडी, आज उसने अपील फाइल किया था ना कि मेरे को 1 को जेल मत भेजो, मेरा तबीयत बहुत खराब है। तबीयत बहुत खराब है। अब नहीं होने, अब मेरे माता पिता, वो वाला भी तो शुरू कर दिया ना नैरेटिव, मेरे माता पिता को प्रताड़ित, माता पिता को ये किया वो किया। 4 जुलाई के बाद दैट पार्टी इज गोइंग टू implode. Bhagwant Mann will form his own separate party in long time coming. Delhi AAP is going to collapse in internal infighting. So you will have a new Punjab regional party. That's it. And that Punjab regional party might have more chances to win against the BJP in Punjab. Exactly. In that circumstance, maybe the BJP can wrest away. Almost certainly the BJP can wrest away Delhi state government if AAP collapses. But what do you think were the drawbacks of the BJP government that they were not able to take up Delhi? यार उनका जो दिल्ली आइडिएशन है और दिल्ली सेल जो है बहुत चुतियों से भरा पड़ा हुआ है। तब भी मैं, इसीलिए मैं पॉसिबली टेक अवे बोल रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में भाजपा ही भाजपा का सबसे बड़ा दुश्मन। देयर इज नोबडी टू सेव। उनके जो कॉर्पोरेटर्स हैं, जब इलेक्शन नहीं होता है कुछ काम नहीं करते, चेहरा नहीं दिखाते हैं। आई स्टिल डोंट नो हु माई लोकल बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव। तेरे को पता है कौन बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव इधर हमारे मोहल्ले में? कुछ किसी को नहीं पता। Nobody knows. I go around asking my neighbors to date. Not one of my neighbors has been able to tell me who the BJP councillor from this area is, who the BJP MLA candidate is. But our MP is Somnath Bharti. We know that. But we don't even know who stood against him from the BJP. We don't know the MLA कौन था। Somnath Bharti actually does good work around here. पता है उसने क्या किया? सिंपल थिंग्स ही इज डन। हमारे जो इधर 2-3 पार्क हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ब्यूटिफाई करके। ठीक। जो लोग जाके पूछते थे ना कि भैया आपका ये कहाँ है, आपका घर कहाँ है, क्योंकि दिल्ली में
कोई भी लोकेलिटी में ठीक से कोई सिस्टमैटिक नंबरिंग का ये नहीं है, इधर 70 लगेगा, उधर 50 51 लग लगेगा, जाएगा, 50 लग जाएगा। 40 पिछवाड़े में लगेगा और बस उधर पता नहीं कहाँ लगेगा। राइट। उसने क्या किया है, हर रोड के इंटरसेक्शन पे लगाया है कि 70 to 101 हियर, 50 to 70 हियर, ऐसे करके साइंस है, सिंपल थिंग्स ही इज डन, जो बेसिक है, जो बेसिक है, यहाँ पे बेसिक है हमारे यहाँ पे, ये वाले घर यहाँ हमारे ये वाले बेसिक घर है, यहाँ। बट यू नो वी आर हैप्पी विद दैट। आई मीन फ्रॉम एन एमएलए दैट्स ऑल यू रियलिस्टिकली वांट। एग्जैक्टली। पर्सनली आई वांट कि पीपल हु जो हड़प लेते हैं ना, उनके घर के बाहर जो हड़प लेते हैं, बोलते हैं ये रिजर्व्ड पार्किंग है, या रास्ते पे आके बगीचा लगा देते हैं उनके पार्किंग, जो उनके घर के बाहर पार्किंग है, दैट शुड बी स्टॉप्ड एंड द एमएलए शुड पुट एन एंड टू इट, बिकॉज़ इफ ही डज दैट he will lose all the votes of the house owners, so he won't. You won't do that. Right, that's a smart move. What do you think BJP Sarkar and Modi ji did wrong when it came to the Manipur incident? They didn't communicate. They simply did not give out their side of the story. They did not let it be known that this entire process was started because of a court order determining that somebody is going to be counted as SC or ST, or rather required reservations. They did a shockingly shoddy job of communication. Manipur mein you think that they could have done a better job of communication and managed this well? See, they managed the security just fine. They did not manage the communications properly. I think the deaths have been limited very significantly. People have forgotten कैसे असम में, नागालैंड, मिजोरम में 80s में कितने सारे कत्ल होते थे. The deaths were actually limited very very significantly. और उन्होंने communicate, बिल्कुल इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है communication. अच्छे से अच्छा काम करते हैं पर कुछ भी communicate ठीक से नहीं करते. So do you think they're not, and do you see them improving in the next session? Do you see any symptoms कि हाँ भाई चीजें improve हो रही हैं, या फिर अभी भी यापा ही चल रहा है communication? Not their communications. ये communications का इनका improvement का कोई scope ही नहीं है, क्योंकि ये समझते हैं कि भाई इस communication से ही हम election जीतते आ रहे हैं, तो इसमें क्या improvement? जो उनके हिसाब से वो खराब ही नहीं है, जो खराब है तो उसको क्या फिक्स करना? Exactly. यार I am very happy being outside, being independent. I like. यार पार्टी में जाने से ना वो discipline होना पड़ता है. I am very disciplined when I work in an organization. Right. Okay. Right. But I enjoy my independence too much. Yes, that's true. I mean, I can be very very disciplined if the need arises. But right now is not the time for me to be disciplined. Right now I want to be shararati. You can single-handedly, with the way you have the orating skills, with the way you come from a lot of knowledge and education, you can take single-handedly, you can kill people in the opposition. अरे बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं ऐसे. सुधांशु त्रिवेदी देख लो, हिंदी में कितना अच्छा काम करते हैं. शहजाद पूनावाला तो रोज राजदीप का अंडी उतार के उसके पिछवाड़े पे लात मारते रहता है. So they also have good people, yeah. Right, makes sense. So भाई, it was an absolute joy ride to sit with you, and a wild one too. मजा आ गया आपके साथ बैठ के. मेरे को भी बहुत मजा आया शान. Thank you. We went into It was areas a great conversation. पहले बात नहीं किए तो काफी मजा आया. Thank you. हाँ, we haven't talked a lot before. हमने अभी तक DMs पे connect किया था, but I'm coming to India in August, तो हम studio से करेंगे. So please be my guest once again. Done. And what do you prefer drinking? Do you like beers or do you like whiskeys? What do you prefer? Single malt. I'm Single not a beer malts? person. Okay, I'll get you some really good Canadian single malts too. Perfect. आपने आयरिश तो बहुत पी होंगी. एक बस Canadian भी काफी underrated है. There are certain single malts that I collect. I'll get you one. ठीक. All right, bye. Take care, buddy. Thank you. And we gotta do it something like this.